complete session में. So the more we are going to share it, the more people are going to approach Arifullah in order to share the recording also later. ठीक है, Okay. तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फायदा ज्यादा लोगों को पहुंचेगा. वो कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग. सो जी आरिफुल्लाह, स्टार्ट करते हैं. Sir, give me 1 minute, please. जी आराम से. Assalamu alaikum everyone. Am I audible to you? Can anyone confirm? Walaikum salam. Yes, ma'am, you are audible. Okay. So first and foremost, thank you everyone to be here with us, and a very warm welcome to all of you on behalf of Freelancing Society. Myself, Jana Vais, and I'm your moderator for today. The society, Freelancing Society, it's an initiative of Micro Merging Software Company, which aims to provide awareness of freelancing to IIU community, and especially to those students who want to pursue their career as freelancers. First of all, let me introduce you to the founders of the society. Sir Muhammad Arif Jan, the founder and CEO of Micro Merging Software Company. He is a freelance trainer and entrepreneur. And Ms. Shahla Javed, she is a freelance writer, content writer, and she's an entrepreneur. And she's also a trainer at our society. To begin with, let me give you a brief introduction of the society. So we at Freelancing Society help students to learn high demanding skills, and then we teach students then how to earn by selling those skills. For this, what we do is we offer 1-day masterclasses, 2-day masterclasses, 1-month training program, and our mega 3 to 6 month all-in-one program. Here at our society, we teach students different skills like content writing, graphic designing, web development, digital marketing, because all of these are high demanding skills. So we teach these skills to students. Then what we do is we teach freelancing platforms such as Upwork, Fiverr, LinkedIn, and also social media platforms such as Instagram and Facebook, because these platforms are necessary for freelancing, because you have to do freelancing somewhere, and these are the platforms where you do freelancing. Then for freelancing, like I always say, that it's a strategic process. For that, what you need is the first thing you will need is a skill and a strong grip over your skill, right? Secondly, what you will need is a platform where you can sell your skill, as I mentioned earlier, like Upwork, Fiverr, and LinkedIn. And then, because most of the students have the skill, they have the platforms, they have very good accounts, but they're unable to get projects just because they lack some strategies, which we call as client hunting or branding strategies. And we at our society teach these strategies to our students. So in today's class, of course, we cannot cover everything, and today's class is on LinkedIn, which is one of the freelance platform. And as we cannot cover everything in this class, but we'll try to give you a roadmap of LinkedIn, and we'll cover all the basic things, and you can ask any question to our very eminent speaker, which is Sir Muhammad Ishtiyaq Khan. And Sir Ishtiyaq, he is a LinkedIn expert. You guys can visit his LinkedIn profile and you will be amazed. Trust me, he's a very eminent speaker, and he'll give us a detailed introduction of LinkedIn, how to build an account, how to optimize your account, and the most important thing, how you can get project in any niche on LinkedIn. So without taking further time, Sir Ishtiyaq, if I'm audible to you, you may start. Thank you so much, Jana Vais, for such a warm welcome and such a nice introduction, and sharing the details of complete session and what the Freelancing Society is doing. And that's really incredible work. I really appreciate Arif Jan and all the team
that actually there is a quotation that basically वो कहते हैं ना like I would say in short is sharing is caring. So the more you are going to share your knowledge, the more you are going to collect, and वो पैसे के उसमें भी हो सकता है, आपके knowledge की उसमें भी हो सकता है. So thank you so much for inviting me for this session and meeting with like virtually meeting with so much talented people here on LinkedIn. So I am unable to share my screen or open my camera for now. So please just let me open the camera or open the share the screen. My voice is audible? Jana Rosh. Yes, sir, your voice is clear. Students, maybe there's an internet connectivity issue at your end. ओके थैंक यू. लेकिन मैं कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता और ना, क्योंकि मैं आई थिंक देयर इज सम राइट्स इशू. Okay, sir, we are allowing you. Thank you. So we have a lot of talented people present here, and actually it's आजकल जो इकोनॉमी चल रही है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, so it's better to learn a skill, and it's better to then master a platform and invest your time in learning a platform that can actually give you the clients, give you the money. ठीक है, because there are a lot of platforms available, Upwork and Freelancer and Guru.com and Fiverr, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स अभी फिलहाल अगर न्यू जॉइनर हैं या ठीक है, यस यस थैंक यू सो मच, आई कैन शेयर. तो अगर न्यू जॉइनर हैं या जो भी मतलब इवन आई वुड से मिड लेवल सेलर हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द क्लाइंट्स. ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि दीज प्लेटफॉर्म्स आर नॉट रियली गुड, ठीक है, बट एक्चुअली दीज प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर वो कहते हैं ना कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग बहुत बैठे हैं एंड एजेंसीज हैं, एंड दे आर नॉट अलाउइंग यू पीपल टू एक्चुअली ग्रेब द क्लाइंट्स एंड फाइंड द क्लाइंट एंड स्टार्ट योर करियर. ठीक है, अब दूसरी एक जो चीज़ है दैट एक्चुअली जो उन प्लेटफॉर्म से जो जो जिससे आप लिंक्डइन बेहतर हैं इज इट बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग. ठीक है, क्योंकि देयर आर मोर देन around 950 million members present on LinkedIn from 200 countries. और चलो मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं थोड़ा बहुत. ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन. ठीक है, सो एक्चुअली जिस तरह मैंने कहा था, ठीक है, both of the links are shared. ठीक है, you can also visit my profile, you can visit Arif Jan profile. ठीक है, and one more thing is that you people can take us and share about this session कि ये सेशन में आपको लोग क्या कुछ सीख रहे हैं, what you are learning and what you are going to expect in this session, और फिर रिव्यू भी शेयर कर सकते हैं. बट इट्स अच्छा, लिंक्डइन पर देयर आर मोर देन 940 million. ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू क्रॉस अराउंड कुछ होगा तकरीबन 1 billion क्रॉस कर लेगा टिल द एंड ऑफ दिस 2023. ठीक है, सो इट्स ए ह्यूज प्लेटफॉर्म, और इसका सबसे जो बड़ा फायदा है, ठीक है, दैट इज दैट यहाँ पे आपके सारे डिसीजन मेकर्स बैठे हैं. यहाँ पे जो लोग बैठे हैं दे आर द प्रोफेशनल्स, दे आर द सीईओ, दे आर द फाउंडर्स एज कंपेयर टू द अदर प्लेटफॉर्म्स. वहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक की मिसाल लूँ, मैं इंस्टाग्राम की मिसाल लूँ, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे आपको क्लाइंट्स नहीं मिल सकते, वहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको हाई टिकट क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल है. ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है इसमें कि फाइवर अपवर्क पर आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर सकते. ठीक है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ब्रांडिंग तो कर लेंगे, अच्छा सा प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे, लेकिन फिर उस प्रोफाइल पर कोई विजिटर आएगा नहीं आएगा, किस तरह आप लेके आएंगे. ठीक है, तो वो या अपवर्क पर उसका भी कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आपका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं बनता. लेकिन लिंक्डइन इज अ प्लेस वेयर यू कैन ग्रो योर पर्सनल ब्रांड, और जब आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा, लोग आपको जानेंगे. ठीक है, देन यू आर गोइंग टू गेट रिस्पॉन्सेज, यू आर गोइंग टू गेट क्लाइंट्स. एक सिंपल मिसाल मैं दूं आपको, इमरान खान की मिसाल देता हूँ. ठीक है, आज गिरफ्तार हो गए, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करें, बट जस्ट कोई यहाँ के मुखालिफ है तो नॉट लाइक, मैं इस पर्सनल ब्रांडिंग की मिसाल देता हूँ. ठीक है,
बात ये कि उसने टिकटॉक ज्वाइन किया एंड विद इन 1 डे एक वीडियो डाली थी छोटी सी और कितने मिलियन फॉलोअर्स वो क्रॉस कर गया, ठीक है। और जो लोग सालों से लगे हैं, सो क्यों एक प्लेटफॉर्म पर गया एंड देन द फॉलोअर जस्ट रश्ड इनटू दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज टिकटॉक इवन मैं पीटीसी में काम करता हूँ, ठीक है, एज ए मैनेजर, और मैंने कभी टिकटॉक कुछ अपने वीडियोस के लिए इंस्टॉल किया था, फिर मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, इतना मेंटेन, लेकिन स्टिल यही लर्निंग के लिए, लिंक्डइन के लिए, लेकिन मेंटेन नहीं कर सका। लेकिन स्टिल मेरे पास अभी भी इंस्टॉल नहीं है, लेकिन बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने टिकटॉक सिर्फ इमरान खान के लिए इंस्टॉल किया, ठीक है। तो बात ये कि पर्सनल ब्रांड जब आपका होगा ना, ठीक है, तो लोग आपको जानेंगे भी और लोग आप पर ट्रस्ट भी करेंगे। और आज जो लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो वो इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि मतलब आरिफ ने आपको या आपको कोई पैसे दिए हैं कि यार इस सेशन में आ जाएं, ठीक है, मुफ्त भी दे रहे हैं, लेकिन स्टिल आरिफ पर या इस सोसाइटी पर आप लोग का एक ट्रस्ट डेवलप है कि यहाँ से आपको वैल्यू मिल सकती है। सो बेसिकली this is the platform where you are going to build your personal brand, ठीक है। अब आते हैं towards the profiling। अच्छा, इसमें जो अब लिंक्डइन को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं कि पहली जो चीज है दैट इज एक्चुअली योर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। 4 स्टेप्स हैं एंड द फर्स्ट स्टेप इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में जो पहली चीज आती है दैट इज योर प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अब मैं 2 चीजें ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, आरिफ की प्रोफाइल भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों बाकी बहुत से प्रोफाइल अच्छी प्रोफाइल मैं ये नहीं कहता, बट जस्ट एक मिनट आपका आरिफुल्लाह URL से ऊपर, और ये बड़ा दोनों बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं आपके पास क्योंकि 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। और अब देखें, ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज योर प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अब प्रोफाइल पिक्चर जो है दैट यू नीड टू बी प्रोफेशनल। वो प्रोफाइल पिक्चर इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपने कोई पार्टी शार्टी में निकाला है और आपका किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। कोई आपने पार्टी में निकाला है कोई पिक्चर, या कोई आपने ईद पे कोई पिक्चर निकाली है और आप वो शेयर कर दें, ठीक है, और आप या फुल बॉडी पिक्चर शेयर कर दें, दैट्स नॉट। यू नीड टू शेयर ए पिक्चर जिसमें आपका जो फेस है वो ज्यादा विजिबल हो एंड शोल्डर अप हो, ठीक है, एंड इट नीड टू बी प्रोफेशनल वन, ठीक है, इट नीड टू बी क्लियर विद द न्यूट्रल बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये दोनों देखें, ठीक है, देयर प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर्स, फेस विजिबल है, शोल्डर अप विजिबल है, एंड दे आर बोथ दी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर्स, ठीक है। ये प्रोफाइल पिक्चर देखिए इमरान खुशहाल की, लुक मैथ्यूज की देखें, मैट बार्कर की देखें, ठीक है। तो मैं सिर्फ मिसाल ये नहीं दूंगा कि मतलब पाकिस्तानियों की, बल्कि जो इंग्लिश हैं, अंग्रेज हैं, उनकी मिसाल दे दूँ कि दे आर आल्सो यूजिंग द सेम टाइप ऑफ जो भी चीज़ मैं बताऊंगा, दे आर आल्सो अप्लाइंग द सेम टेक्निक्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि आपका प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होना चाहिए। इससे पहले आप कोई वीडियो भी यहाँ लगा सकते थे, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म कर दी है। और प्रोफाइल पिक्चर के लिए आपको कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत से माशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो कहेंगे कि यार इश्तियाक कह रहे हैं कि यार ग्राफिक डिज़ाइनर होने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम क्या कमाएंगे। सो बेसिकली एक मेरे जैसे इंजीनियर बंदा जो है, ठीक है, तो उसको भी कोई ग्राफिक डिज़ाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव द कैनवा अवेलेबल, वी हैव द profile PFP maker available, we have the remove background tools available, ठीक है, and you can just take a picture on your mobile, ठीक है, स्मार्टफोन पे, and then you can just set it, और वो सब कुछ आप कर सकते हैं through different tools available online, ठीक है। और इसमें से एक जो टूल है that is the PFP maker, and another tool is the remove BG, ठीक है। ये 2 tools हैं, and then you need to just open these tools, ठीक है। Now the second thing is that जो चीज़ जो नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है that is मतलब वो पहले मतलब आपका नाम जो है it need to be your full name as per CNIC, ठीक है। आपके नाम में कोई लाइक ये नहीं कोई भी स्किल सेट नहीं लिखनी होनी, या आपने नहीं लिखनी कोई भी स्किल सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ इश्तियाक खान लिंक्डइन एक्सपर्ट, ठीक है, लिंक्डइन चेक करेगा मेरे प्रोफाइल को एंड डायरेक्टली मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आपका प्रोफाइल जो नाम है दैट इज नॉट मैचिंग योर आपका जो पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड आपने मुझे प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपका नाम मैच नहीं करेगा, आपका प्रोफाइल बंद कर देगा, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, फिर ओपन करना बहुत ही मुश्किल काम है।
सो यू नीड टू राइट योर फुल नेम एज पर योर पासपोर्ट या CNIC, ठीक है। नेवर एवर यू राइट योर स्किल सेट। बहुत से लोग प्रोफाइल आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये माशाल्लाह हम पाकिस्तानी और इंडियंस ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है। कि अपने नाम के साथ पूरी स्किल सेट लिख देते हैं, कहानी लिख देते हैं, ठीक है। Another thing is that is the LinkedIn headline। ये वाली जो चीज़ है ना ये आपको सेल करती है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ किस तरह करती है आपको। ये आपको यूनिक करती है। 940 मिलियन मेंबर्स आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। आप न्यूज़ फीड बनाते हो तो आपको 3 चीज़ें नजर आती हैं। नेम, अच्छा मैं आपको जानता नहीं हूँ तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप कोई भी हो। प्रोफाइल पिक्चर अगर जानता नहीं हूँ तो मैं क्लिक भी नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करेगी इस प्रोफाइल की तरफ, दैट इज दिस स्टेटमेंट, लिंक्डइन हेडलाइन। लिंक्डइन हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 20 कैरेक्टर्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो फर्स्ट 70 कैरेक्टर्स हैं वो विजिबल होते हैं, ठीक है। और उसी 70 कैरेक्टर्स में आपने अपने आप को पिच करना है। लिखने तो सारे यूज करने हैं 220 कैरेक्टर्स, लेकिन पहले 70 कैरेक्टर में अपने आप को आपने पिच करना है, ठीक है। लाइक ये देखें, ड्राइविंग सक्सेस टू लिंक्डइन पर्सनल एंड कंपनी ब्रांडिंग, ठीक है। ये देखें, हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स बिकम इररेजिस्टिबल टू इनबाउंड क्लाइंट्स। अब किसी को इनबाउंड क्लाइंट्स चाहिए, वो इस प्रोफाइल को देखेगा। अब कोई भी पिक्चर है, कोई भी नाम है, कोई गरज नहीं है, ठीक है। बट व्हाट ही और शी इज गोइंग टू डू इज दैट, मैं एंटरप्रेन्योर हूं और मुझे इनबाउंड क्लाइंट्स चाहिए लिंक्डइन पर, देन आई एम गोइंग टू क्लिक दिस प्रोफाइल एंड विजिट दिस प्रोफाइल। तो ये जो लिंक्डइन हेडलाइन है दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट यू टूवर्ड्स द प्रोफाइल। अब यहाँ पे मैं विजिट करूंगा, फॉर एग्जांपल किसी ने मेरा हेडलाइन रीड किया और वो यहाँ पे विजिट किया, तो पहली जो चीज नजर आती है दैट इज द कवर फोटो। लेकिन पहले लिंक्डइन हेडलाइन को थोड़ा वो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लिंक्डइन हेडलाइन आपने किस तरीके से लिखनी है, ठीक है। लिंक्डइन हेडलाइन में आपने ये जो बहुत से आप लिखे होंगे ना, ग्राफिक डिजाइनर एंड ब्रांडिंग एक्सपर्ट, ठीक है, बस ये लिख लेते हैं फिर, या और इस आगे लिख लेते हैं ना बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट, ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज। मेरे भाई मैं क्या करूं अगर आप ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज हो? आप मुझे बताएं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपके पास क्या कुछ एक्सपीरियंस है, आपके क्या स्किल सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, हेल्पिंग आवर एंटरप्रेन्योर बिकमिंग इररेजिस्टिबल टू इनबाउंड क्लाइंट बाय पोजीशनिंग योर थॉट लीडर, ठीक है। अच्छा, ये थॉट लीडर स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये देखें, आरिफुल्ला की वो देखें, ठीक है। इसमें डेवलप 200 प्लस बिजनेस वेबसाइट विद 5 स्टार्स, ठीक है। आई हेल्प यू बिल्ड योर, अब ये देखें ना, यहाँ पे उसने अपने आप को पिच कर दिया है कि मैंने 200 प्लस बिजनेस वेबसाइट्स डेवलप किए हैं एंड विथ 5 स्टार रेटिंग्स। दैट्स रियली इंप्रेसिव। कोई भी इसको देखेगा और उसको वेबसाइट डेवलपमेंट के उसको उसको वेबसाइट डेवलप करना है, ही और शी इज गोइंग टू क्लिक दिस प्रोफाइल। आई हेल्प यू build your online presence, website development expert, freelancer and Fiverr, Upwork founder at micro merging, ठीक है। अब ये देखें, अब पहले हम क्या करते थे, ये फाउंडर का लफ्ज जो है ना, फाउंडर, एंटरप्रेन्योर और ये सारे जो जो वर्ड्स है ना, ये थोड़े बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि हर बंदा इधर फाउंडर ही है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि फाउंडर वैसे ही बना हुआ है, कुछ काम करता होगा ना जो फाउंडर है, लेकिन हर बंदा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करता है या इस तरह के स्टेटमेंट से स्टार्ट करता है जो किसी को वो अट्रैक्ट कर सके। एक मार्केटिंग स्टेटमेंट, एक सेलिंग स्टेटमेंट से स्टार्ट करता है। किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कर ले, किसी का भी ऑन हो। अच्छा, इसके बाद अब देखें, अब आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन बंद करता हूँ और अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जस्ट 1 मिनट।
अब स्क्रीन विजिबल है सबको, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हेडलाइन। अब हेडलाइन आपने लिखनी किस तरह है, ठीक है, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। दो वर्जन्स यूज होते हैं, एक होता है स्किल सेट या मेन निश आप लिख दे, फिर इसके बाद सेलिंग पॉइंट या एक्सपीरियंस लिख दे, और फिर इसके बाद सब निश के कीवर्ड्स लिख दे। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं या आपकी डिजिटल मार्केटिंग निश है तो डिजिटल मार्केटिंग एंड फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, ठीक है। इसके बाद फिर आप एक्सपीरियंस लिख दें या यूनिक सेलिंग पॉइंट लिख दें। फॉर एग्जांपल आप लिख दें वर्क विद 200 प्लस इंटरनेशनल क्लाइंट्स, या आरिफुल्लाह ने जिस तरह लिखा है कि 200 प्लस वेबसाइट्स विद 5 स्टार रेटिंग्स, ठीक है। इसके बाद फिर आप सब निशेस लिख दें कि फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और इंस्टाग्राम एड्स और यूट्यूब एड्स, तो इस सारी चीज़ें आप मेंशन कर दें, अप टू 3 मेंशन कर दें। और इसके बाद अगर आप किसी भी उसके फाउंडर भी हैं तो यू कैन मेंशन इट एट द एंड, बट फाउंडर स्टार्ट में मेंशन ना करें क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स हो गए हैं, ठीक है। यू नीड टू बी यूनिक। इसके बाद एक दूसरा वर्जन जो है वो यहाँ से हमने स्किल सेट, यहाँ से हमने यूएसपी से स्टार्ट किया, फिर एक्सपीरियंस, फिर स्किल सेट, जिस तरह आरिफुल्लाह का है, ठीक है। ये देखें यूएसपी से स्टार्ट किया, यूनिक सेलिंग पॉइंट, एंड देन विद यूएसपी एंड एक्सपीरियंस, एंड देन फिर इसके बाद स्किल सेट वगैरह और सारी चीजें उसने मेंशन किए, एंड फाउंडर, ठीक है। तो ये दो वर्जन है। अच्छा, नेवर एवर आप अपने कभी भी कोई ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटी, ओपन फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क, ओपन फॉर डिजिटल मार्केटिंग वर्क, ओपन फॉर द, नो, कोई भी इस तरह नहीं लिखनी। आपने अपनी वैल्यू शो करनी है और बंदे आपके पास खुद आएंगे अगर आपने सही तरीके से वैल्यू शो की होगी। लेकिन उसके लिए भी कुछ और भी असूल हैं, ये नहीं है सिर्फ हेडलाइन नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये देखिए, ये कुछ आइडियाज हैं, ठीक है। Digital marketing expert, I help businesses boost their revenues through Facebook and ads and Google ads. Work with 50 plus e-commerce businesses, social media marketing, PPC advertising. ये देखिए ना, पहला जो मैंने वर्जन शेयर किया उसका एग्जांपल है। I help coaches convert 10 times more through landing pages, design, copywriting expertise. ये देखिए ना, पहला USP आ गया, unique selling point. Work with 10 plus international keynote speakers, copywriting, sales copywriting, web copywriting, ठीक है। Help 100 plus businesses to start their online journey through my web development expertise. ये देखिए ना, वही जिस तरह आरिफुल्लाह ने लिखी है तो वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये उस तरह है। अब अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपनी स्किल सेट लिख दें। फिर आई राइट सेल्स कॉपी फॉर शॉपिफाई स्टूडेंट, बूस्ट कन्वर्जन्स बाय 10x, सेल्स कॉपी राइटिंग, सेल्स कन्वर्जन एंड वेब कॉपी। अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई भी, अगर आपने कोई क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, यू कैन आल्सो राइट सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज कॉपी राइटर, यू कैन राइट, ताकि कुछ ना कुछ आप वैल्यू शो करें, ठीक है। ओके, अच्छा, अब अपने नेक्स्ट जो आना है दैट इज, अब आते हैं टूवर्ड्स, अब किसी ने मेरा ये प्रोफाइल मेरा देखा, ठीक है, एंड देन he or she just open my profile, तो पहली चीज जो नजर आती है दैट इज, क्या नजर आती है, लिंक्डइन बैनर। अब आपने रोड पर देखे होंगे, मार्केट में देखे होंगे, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं और ये और मार्केटिंग की होती है, दैट इज द सेम बैनर, ठीक है। और ये भी वही बैनर है, वही आपका, काइंडली इसका माइक ऑन है, माइक एंड कैमरा दोनों ऑफ कर ले काइंडली, ठीक है, वरना फिर एडमिन ऑफ कर देगा, ठीक है, फिर कोई बोल नहीं सकेगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये लिंक्डइन बैनर है। लिंक्डइन बैनर जो है इसमें आपने क्या करना है कि अब ये फर्स्ट, अब मेरी भी वीडियो ऑफ हो गई मेरे भाई, आई थिंक। अच्छा, वीडियो ऑफ कर दी, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये रिस्ट्रिक्ट कर दें, अगर मैं डायरेक्टली एडमिन बन सकता हूँ, ठीक है, और रिस्ट्रिक्ट कर दें इनको, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए काइंडली। इतने सेशन में आते हैं तो कम से कम। अच्छा, जो पहली चीज जो देखते हैं कोई बंदा, दैट इज द लिंक्डइन बैनर, ठीक है। अब लिंक्डइन बैनर जो है इसको आपने
इसमें अब लोग हम क्या करते हैं, कोई मोटिवेशनल कोट लिख देते हैं या कोई भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेकिन आप इनको दो तरीकों से डिजाइन कर सकते हैं। वन इज दी डिजाइनिंग विद दी थॉट लीडरशिप स्टेटमेंट या अथॉरिटी स्टेटमेंट, और एक होता है स्किल्ड के लिहाज से, स्किल के लिहाज से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ। That one is the authority based, ठीक है, like helping founders, business and coaches scale 300% faster through my skill set, ठीक है, gift for you in the featured section। अब देखिए यहाँ पे आरिफुल्लाह का ओपन करते हैं, ये देखिए दिस इज द स्किल बेस्ड कवर लिंक्डइन बैनर। अच्छा, इसको आपने, अब अगर आप बिगिनर हैं तो या आपकी कोई एजेंसी है तो आप इसको इस तरीके से डिजाइन करें, ठीक है। अगर आप 1-to-1 कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर तो फिर इस तरीके से प्रोवाइड करें, या आप कोई ऑलरेडी मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं तो आप इस तरीके से डिज़ाइन करें, ठीक है। आप इवन बिगिनर भी उस तरीके से कर सकता है इस तरीके से, लेकिन आई वुड रिकमेंड के जो भी आपके प्रोफाइल पर आए उसको पता चले कि आप क्या कुछ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखें ना, यहाँ पे उसने जो भी बैनर कलर यूज किया ना, बैकग्राउंड यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, बड़ा ही प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, और इस तरह प्रोफेशनल तरीके से आपने डिजाइन करनी है। नेक्स्ट वन इज के आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल्स स्टेट में लिखनी है, लाइक रेडी टू बूस्ट योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है, हाँ मैं करना चाहता हूँ, अपना नाम लिख के फिर आपकी क्या एक्सपर्टाइज है, एंड देन, और ये देखें ना बड़ा अच्छा वेब डेवलपर है, वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये देखें ना बड़ा ही अच्छा उसने जो भी इमोजी लगाए हैं, जो भी उसने वो यूज किया है, दैट इज आल्सो रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बड़ी अच्छा प्यारा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें ना, इस साइड पे राइट साइड पे उसने सारे वो स्किल सेट मेंशन किए हैं कि वो प्रोवाइड कर सकता है या उसकी जो भी एजेंसी है वो प्रोवाइड कर सकती है, एंड देन कनेक्शंस, व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। दैट्स द वे यू नीड टू डिजाइन अ लिंक्डइन बैनर। और अगर कोई भी ग्राफिक डिजाइनर है या उसको ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ मतलब वो तो बड़ा ही अच्छा बेहतरीन तरीके से अपने डिजाइन करना है, उस पर कोई इस तरह कोई ब्लर और सारा कुछ बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं है और मेरी तरह इंजीनियर बनने हैं तो आपने क्या करना है कि आप कैनवा को भी यूज कर सकते हैं, एंड कैनवा में आपको इवन विद फ्री कैनवा, ठीक है, कोई भी आपका कैनवा प्रो नहीं चाहिए, आपने क्या करना है, लिंक्डइन बैनर, ठीक है, लिंक्डइन बैनर आपने लिखना है, और कितने आपके पास, ये देखिए 1,01,04K, ठीक है, और यहाँ पे आप फिर फिल्टर कर सकते हैं फ्री के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको इधर ऑप्शन होता है कोई फ्री का, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कई भी यहाँ पे ऑप्शन होता है फ्री का, अब मुझे नहीं मिल रहा, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मेरा कैनवा प्रो है तो इसलिए नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा ये कैनवा प्रो है। अच्छा, तो आपको ये देखा ना बहुत से डिजाइन्स पड़े हैं, ठीक है, लेकिन आपने इस रूल को फॉलो करना है कि इस तरीके से आपने डिजाइन करना है, तो आपके प्रोफाइल पर जो भी आएगा वो डिसाइड कर लेगा कि आप उसको, आप वो जो सर्विसेज मांग रहा है या मांग रही है वो आपके पास है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपने बड़े ख्याल से कोई भी मोटिवेशनल कोट वोट नहीं लिखनी, इस तरह की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि इस टेक्निक को फॉलो करें, ठीक है। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज दी, ये वाली चीज क्या है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्रिएटर मोड, ठीक है। क्रिएटर मोड जो है, आप अगर प्रोफाइल में थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको क्रिएटर मोड ओपन आपको नजर आएगा, आपके प्रोफाइल में ऑफ होगा, आपने इसको ऑन करना है, और यहाँ पे आपके प्रोफाइल, आपके जो भी कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनर है तो यू नीड टू मेंशन ग्राफिक डिजाइनिंग, like you talk about graphic designing, you talk about branding, you talk about for example freelancing, you talk about कुछ इस तरह बैनर एड्स, या मतलब इस तरह कुछ भी आप जो भी ग्राफिक डिजाइन से ताल्लुक रखते हैं चीजें, या आप डिजिटल मार्केटर हैं, यू टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, यू टॉक अबाउट फेसबुक एड्स, यू टॉक अबाउट गूगल एड्स, यू टॉक अबाउट ब्रांडिंग, यू टॉक अबाउट कंटेंट मार्केटिंग, यू टॉक अबाउट मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डायरेक्ट मार्केटिंग, जो भी बहुत इनबाउंड आउटबाउंड लीड्स, लीड जनरेशन, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने ख्याल रखनी है,
आपने कभी ये नहीं करना आई टॉक अबाउट ग्राफिक डिजाइनर, यू डू नॉट टॉक अबाउट ग्राफिक, यू टॉक अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल सेट आपने मेंशन करना है। यू डू नॉट टॉक अबाउट सोशल मीडिया मार्केटियर, बट यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। यू टॉक अबाउट सेल्स नेविगेटर टूल या कोई भी इस तरह नाउन आपने यूज करना, मतलब क्या कहते हैं वर्ब के क्या कहते हैं, ठीक है, वो आपने यूज करना है। और बट यू डू नॉट नीड टू मेंशन एज कि डिजिटल मार्केटियर या इस तरह आपने कोई यूज नहीं करना। एंड आप ये सब किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन click add the topic and write, for example I write digital marketing, ये देखिए ना मैं ऐड करता हूँ तो डायरेक्टली। अच्छा, एक और चीज मैंने भी गलती से स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी, तो आपने भी इस तरह गलती नहीं करनी, स्पेलिंग को चेक करना है। और यहाँ पे एक और गलती है इसमें कि डिजिटल मार्केटिंग एक गलत स्पेलिंग वाली एक डिजिटल मार्केटिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, तो आपने वो सेलेक्ट नहीं करनी। इसके बाद आपने स्पेलिंग का बड़ा ख्याल रखना है और उन कीवर्ड्स को चेक करना है जो आपसे रेलेवेंट हो, ठीक है। और आपने अच्छा एक और चीज आपने ये करनी कि आपने यहाँ पे हैश खुद नहीं लगाना, हैश लगाएंगे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, अब शायद देखिए ना डबल हैश का डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ठीक है। नो, यू जस्ट नीड टू टाइप लाइक दिस, खुद अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इस तरीके से। ये आपने ओपन करना है, तो कोई भी आपके प्रोफाइल पर आएगा तो उसको पता चलेगा कि अच्छा आप किन चीजों के बारे में जानते हैं, किन चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड इवन एनीवन कैन सर्च यू, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज योर लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन डिपेंड करता है कि आप अब लोकेशन अब मैंने आजकल यूएस की लगाई, यूएस की मैंने क्यों लगाई है मैं आपको बताता हूँ। आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है, मैं भी पाकिस्तान में जॉब करता हूँ, लेकिन मैं एक यूएस स्टार्टअप के साथ काम करता हूं, ठीक है। एंड आई जस्ट वांट टू शो द कंपनीज इन द यूएस दैट आई एम वर्किंग रिमोटली इन द यूएस, लेकिन रिमोट का कोई ऑप्शन है नहीं, बट आई जस्ट वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट मार्केट, ठीक है। सो यू कैन डू, लेकिन ये नहीं करने का आप काम अभी करते नहीं है एंड यू जस्ट मेंशन इट और भी आपका प्रोफाइल ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है अगर आप गलत एड्रेस यूज करेंगे, ठीक है, बट यू नीड टू यूज इट when you have a job there remote या जो भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने एक और चीज जो यूज करनी है, ये देखिए ना ये वाला लिंक। अच्छा, ये वाला लिंक जो है ना, ये आप किस तरीके से यूज करेंगे, आपने क्या करना है, क्रिएटर मोड पहले ऑन करना है। क्रिएटर मोड ऑन करेंगे तो अपने यहाँ पे आप आएंगे नीचे और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कस्टम एक्शन मिल जाएगा, ये बटन, ठीक है। ये सब, ये जो लिंक है ये सबके लिए अवेलेबल है, ये प्रीमियम है, ये सिर्फ जो बंदा प्रीमियम यूज करता है, सेल्स नेविगेटर जिस तरह मैं पे करता हूँ 70,000 80,000 पर मंथ, ठीक है, तो या आप बिजनेस यूज करते हैं तो उसके लिए ये बटन अवेलेबल है। एल्स आप कोई लिंक यूज करेंगे और इस लिंक को आपने जरूर एक्टिवेट करना है। और क्यों एक्टिवेट करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है कि लिखना है कि विजिट चेक आउट माई पोर्टफोलियो, चेक आई हाउ आई डिजाइन फॉर ब्रांड्स, इस तरह की कोई सेलिंग टेक्स्ट या इस तरह कोई कैप्शन ऐड करना है विद इन 30 कैरेक्टर्स, ठीक है, ताकि कोई भी आपके प्रोफाइल पर आए तो वो उसको क्लिक करे और आपके पोर्टफोलियो पर विजिट करे। अच्छा, यहाँ पे लिंक कौन सा डाल, लिंक आपने अपने पोर्टफोलियो का लिंक डालना है। इवन आपके अपवर्क पर आपकी बड़ी अच्छी रेटिंग है, उसका अपवर्क प्रोफाइल का लिंक डाल सकते हैं, फाइवर प्रोफाइल का लिंक डाल सकते हैं। आपने गिग की लिंक नहीं डालनी, प्रोफाइल का लिंक। बिहेंस पर या किसी जगह पर आपका पोर्टफोलियो है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड बिहेंस पर बनाए या कोई भी वो टूल है, ठीक है, उन पर आप बनाएं पोर्टफोलियो। लिंक स्टार भी है लेकिन वो प्रीमियम है, लेकिन बिहेंस पर अच्छा है, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाएं अपनी, अच्छी सी प्यारी सी पोर्टफोलियो बनाएं। और इवन आप कुछ किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, यू कैन क्रिएट ए पोर्टफोलियो ऑन बिहेंस और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दें एंड जस्ट मेंशन इट हियर कि इन ए वे के वो लोग आए और इस पर क्लिक करें इन व्हाट लाइक दिस वन, विजिट माय पोर्टफोलियो और चेक हाउ आई हेल्प माय क्लाइंट्स। इस तरीके से कोई स्टेटमेंट आप ढूंढें एंड जस्ट मेंशन इट हियर। तो जो लोग भी आएंगे तो यहाँ भी देखिए ना ये लिंक क्लिकेबल लिंक है, ठीक है, तो वो आएंगे और इसको चेक करेंगे। अब आई एम into the personal branding, into this LinkedIn consulting and everything, ठीक है। मेरा अपना एक छोटा सा स्टार्टअप है हसलर्स लॉन्च पेड, ठीक है, 1-to-1 कंसल्टिंग में प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन उसमें जो है अब मैं सिर्फ मुझे लीड्स चाहिए, मुझे अपनी ईमेल लिस्ट ग्रो करनी है, तो इसलिए मेरे पास 2 गिफ्ट्स हैं एंड आई जस्ट
पुट इट देयर ऑन माय वेबसाइट, ठीक है, और कोई भी जाएगा मुझे ईमेल देगा एंड दे आर गोइंग टू डाउनलोड इट, ठीक है। साइड हसल लॉन्च पेड, लिंक्डइन लॉन्च पेड, कोई ई बुक्स हैं एंड फ्रॉम 0 to 1000 पर मंथ ऑन लिंक्डइन इन 30 डेज, ठीक है। 3 है, लेकिन ये 2 एक्टिव हैं, ये अभी इनएक्टिव है, ठीक है। तो आपने ये करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट वन इज़ दी जो आपने यहाँ पे ओपन टू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। मुझे 2 नजर आ रहे हैं, आपको 3 नजर आएंगे। फाइंडिंग ए न्यू जॉब, हायरिंग, एंड थर्ड वन इज दी प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, रिमोट जॉब ढूंढना चाहते हैं, कुछ भी, तो यू नॉट जस्ट क्लिक ऑन दिस फॉर फाइंडिंग ए न्यू जॉब, क्लिक ऑन एड दी जॉब टाइटल्स। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं यार? आई थिंक रिकॉर्डिंग नहीं हो रही मेरे ख्याल में। अच्छा, मुझे कुछ चेक कर ले मेरे भाई। मुझे तो कोई, क्योंकि मुझे मैसेज आए हैं रिकॉर्डिंग अनअवेलेबल, मेरी तो अनअवेलेबल, लेकिन अच्छा नहीं, रिकॉर्डिंग गूगल मीट पे हो रही है डायरेक्टली या उस पे हो रही, कोई दूसरे टूल पे? ओके ओके, ठीक है, सही है। मैं समझा, मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो मुझे नज़र नहीं आ रही कोई, ठीक है। मैंने कहा कोई बाद में फिर अवेलेबल होना ये सेशन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आपने क्या करना है कि जॉब टाइटल्स ऐड करने हैं, और आप 5 जॉब टाइटल ऐड कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक उसके साथ, ठीक है। यू नीड टू मेंशन लोकेशन टाइप्स, और अगर आप फ्रीलांसिंग सिर्फ करना चाहते हैं या यू आर ओनली ओपन फॉर द रिमोट वर्क, इन रिमोट पर क्लिक करें, या हाइब्रिड पर क्लिक कर सकते हैं, या ऑन साइट पर, डिपेंडिंग अपॉन यू। यहाँ पे आपने लोकेशन क्या कर, ऑन साइट आप कर सकते हैं जहां भी आप करना चाहें, लेकिन आपने क्या करना है, स्पेसिफिक सिटीज नहीं लिखनी। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि मैं आई एम ऑन साइट ओनली फॉर इस्लामाबाद, ठीक है, या फॉर एग्जांपल बंदा बैठा होगा शेखपुरा में, ठीक है, तो शेखपुरा में कोई मार्केट ही नहीं है फॉर एग्जांपल, या आपके फॉर एग्जांपल मैं लकी मरवत से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ लकी मरवत, ठीक है। अब मेरे भाई लकी मरवत में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं ऑन साइट जॉब कहाँ से मुझे मिलेगी, ठीक है। सो बेसिकली मेंशन दी कंप्लीट ओनली कंट्री, ठीक है, और फिर आपके लिए आपके ऑप्शंस वाइड हो जाएंगे, आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। एंड आल्सो यू कैन ओपन फॉर दी ऑन साइट लोकेशन, यूएसए, कनाडा, एवरीवेयर, ठीक है, जहाँ भी आप ओपन करें, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर मार्केट, आपकी स्किल सेट की डिमांड कहाँ पे है। एंड बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सारी। इसके बाद आपने रिमोट लोकेशन पे क्या करना है, एड रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन में फिर आपने ये नहीं करना कि भाई रिमोट ही में पाकिस्तान अवेलेबल, नो, रिमोट तो भाई आपने डॉलर कमाने हैं, ठीक है। डॉलर कमाने के लिए आपने यूएस में रिमोट जॉब करनी होगी, ठीक है, जिस तरह मैं भी अभी कर रहा हूँ आजकल, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, फॉर एग्जांपल कनाडा, ठीक है, खासकर यूके के जो क्लाइंट्स हैं, मेरा थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है उनके साथ, ठीक है, तो खासकर यूएस के क्लाइंट बड़े अच्छे हैं, कनाडा के बड़े अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन यूके के थोड़ी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन ट्राई। अच्छे लोग हर तरह, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ कि आपने ये नहीं करना कि आप, मैंने बता दिया तो आपने यूके की तरफ नहीं जाना, आपने ज़रूर ओपन करना है इसको, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। यू नीड टू मेंशन द स्टार्ट डेट एंड यू नीड टू मेंशन एम्प्लॉयमेंट टाइप्स, और ये इंटर्नशिप की बजाय सब आपने ओपन करने हैं, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन दी रिक्रूटर्स ओनली, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे, ठीक है, तो रिक्रूटर ओनली ओपन कर लें, ठीक है। सॉरी, जॉब कर रहे हैं तो रिक्रूटर ओनली ओपन कर लें, ताकि रिक्रूटर्स को पता चले कि आप इस ओपन फॉर दी वर्क है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो इसको भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसको ओपन करें, ठीक है, क्योंकि ये जो बैनर है ना, ये अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता, ठीक है। आप कर सकते हैं, लेकिन और अगर आप फ्रेशर हैं तो ये वाला ओपन कर लें, या अगर आप थोड़े अच्छे से ग्राफिक डिजाइन, तो अपने लिए कोई बैनर डिजाइन कर लें और लिख दें कि फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर, या ताकि कोई भी देखे तो थोड़ा आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो डिफरेंट भी होगा, इस तरह का बैनर भी बना होगा, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटियर, ठीक है, वो भी अगर आप लिख दे तो दैट्स आल्सो रियली कूल वन, ठीक है, बड़ा अच्छा आइडिया। मैंने खुद भी यूज किया था, अभी तो यूज नहीं किया, लेकिन पहले मैंने यूज किया था एक दफा, ठीक है। So you can do this one, ठीक है। So you need to add the different job titles, 5 job titles आपने ऐड करने हैं, 5 लोकेशन आपने ऐड करने हैं, and you need to mention all these things and then save,
जब जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पे वो ओपन टू वर्क ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपने प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं करने वाला भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी चीज है, बहुत से लोगों के प्रोफाइल पर ओपन नहीं होगी, दैट इज दी प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब ये जो चीज है ये आपके लिए है, फ्रीलांसर्स के लिए है, ठीक है। फ्रीलांसर्स के लिए किस तरह है कि आपने ओपन टू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टेब मिलेगा एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन। यहाँ पे आपने इसको एडिट करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, एडिट करने के साथ आप यहाँ पे 10 स्किल्स ऐड कर सकते हैं, लाइक कैरियर डेवलपमेंट, कोचिंग, लीड जनरेशन, कंटेंट मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिजिटल मार्केटिंग, सारी चीजें, ठीक है। और आपने अपनी स्किल के मुताबिक अगर कोई स्किल मेंशन नहीं हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑलरेडी 10 कंप्लीट है, लेकिन अगर कोई स्किल मेंशन नहीं हो तो आप उसके जो मेन निश है या उसका रेलेवेंट स्किल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने 10 के 10 ये यूज जरूर करने हैं, ठीक है, लेकिन रेलेवेंट स्किल के साथ। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे शॉर्ट अबाउट सेक्शन लिखना है और इसमें आपने बताना है कि आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, उन और आपके क्या क्या स्किल सेट हैं, और आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और वो आपको कहाँ कहाँ पे रीच कर सकते हैं। एंड जस्ट राइट इट इन दी 500 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम आप 500 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट। आपने कहा वर्क लोकेशन, आपने आई एम अवेलेबल टू वर्क रिमोटली। आप यहाँ पे ये देखे ना, बड़ा ही अच्छे, अभी डेवलप कर रहे हैं, अभी स्टिल इट्स इन डेवलपमेंट फेजेस, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि आप प्राइसिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं या कॉन्टेक्ट फॉर प्राइसिंग, ठीक है। एंड रिव्यूज आप विजिबल रखना चाहते हैं, इट्स गुड टू मेक देम विजिबल एंड अलाउ, और ये आपने चेक करना है, ये अनचेक नहीं होगा, ये चेक करना है, ठीक है। अलाउ लिंक्डइन मेंबर यू आर नॉट कनेक्टेड टू मैसेज यू फॉर फ्री। अब इसका मकसद क्या है, आपने अभी प्रोफाइल ओपन किया या आपके 500-600 कनेक्शंस हैं, आपने ये पेज डेवलप किया, इसको ऑप्टिमाइज किया, और आपने जब इसको ऑप्टिमाइज किया तो आपने इसको अनचेक किया। अब जो बंदा आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, आपको मैसेज ही नहीं कर सकता सर्विसेज के लिए, उसको सर्विसेज तो आपकी चाहिए लेकिन मैसेज नहीं कर सकता, आपने इसको ओपन करना है ताकि कोई भी आपको सर्विसेज के लिए मैसेज कर सके, ठीक है। और इट्स बाय डिफॉल्ट विजिबल टू एवरीवन, ठीक है। एंड यू नीड टू क्लिक ऑन सेव एंड देन दिस इज डन। अच्छा, इसके नीचे आपने, आप फ्रीलांसर्स हैं, अपने पोर्टफोलियोज यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। लेकिन पोर्टफोलियो में भी आपने थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखानी है। प्रोफेशनलिज्म किस तरह आपने दिखानी है, आपने उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड करनी है, या आपने कितने काम किए तो वो सारी चीज़ आपने ऐड करनी है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी जो बाय डिफॉल्ट एक पिक्चर का नाम नहीं होता 123.jpg, उस तरह के अपलोड कर लेते हैं, फिर मैंने काम कर दिया, मैं तो बस तीर मार दिया मैंने, ठीक है। नो, यू नीड टू मेंशन डिटेल्स, ठीक है, कि वेब डेवलपमेंट सर्विसेज मैंने प्रोवाइड किए हैं, किन कंपनीज को किए हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। एंड यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस, एड इन इमेज, वीडियो भी कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन आल्सो रीअरेंज दिस थिंग्स, ठीक है, आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। एंड यू कैन एड अप टू 8 मीडिया आइटम्स, और ये बहुत जरूरी है, आपने इसको जरूर ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जब ये ओपन करेंगे तो बहुत से लोग, अच्छा इश्तियाक के प्रोफाइल में तो 4 टैब्स हैं यहाँ पे, ये मेरे प्रोफाइल में तो कोई नहीं है, सिर्फ रिव्यू स्टेटस है, और रिव्यूज आपको इस तरह मिलेंगे, ठीक है। आप किसी भी रिव्यू मांग सकते हैं, जस्ट लाइक फाइवर अपवर्क, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। आपके प्रोफाइल में अभी जब आप ओपन करेंगे सर्विस पेज होगा और ये पेज होगा, लेकिन अगर आपको कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तब फिर आपके प्रोफाइल में ये पेजेस भी, या आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे तब फिर आपके प्रोफाइल में ये चीज़ें विजिबल होंगी। अब रिक्वेस्ट किस तरह आती हैं, ये देखें, मुझे रिक्वेस्ट आई है 3 महीने पहले, फिर अभी 6 महीने, ठीक है, कुछ मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं, क्योंकि मैंने ये इतना एक्टिव नहीं रखा, ठीक है। तो न्यू रिक्वेस्ट इस तरह आती हैं और आपके सारे वो प्रोजेक्ट डिटेल्स और क्या चीज़ है और क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो इस तरह मेंशन होते हैं, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, रेज्यूमे रिव्यू है, ठीक है, प्रपोजल सबमिटेड, कंप्लीटेड क्या स्टेटस है, ठीक है, रेज्यूमे रिव्यू कंप्लीटेड, और ये भी कंप्लीटेड, ठीक है। तो वही फाइवर की तरह काम करता है, लेकिन थोड़ा, या अपवर्क की तरह, लेकिन थोड़ा अभी इतना डेवलप नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स ए really great way to actually showcase yourself in front of the opportunities, ठीक है। और आपने इसको सही तरीके से डिजाइन करना है, ये नहीं करना सिर्फ जान नहीं छुड़ानी, जान छुड़ाएंगे तो क्लाइंट नहीं आएगा, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म इज द फर्स्ट वे टू ग्रो योर पर्सनल ब्रांड, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं
टूवर्ड्स दी फीचर सेक्शन। अब फीचर सेक्शन जो है, आप किसी भी शॉप में जाते हैं, सॉरी मार्केट में जाते हैं, आपको मुख्तलिफ शॉप्स हैं, उसमें शोकेसेस लगे होते हैं, उस शोकेस में उनके को क्या क्या रखा होता है, टॉप प्रोडक्ट्स रखे होते हैं ताकि क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, उन्हें कोई गन बला नहीं चाहिए होती वहाँ पे अपने शोकेस में, बल्कि टॉप प्रोडक्ट रखे हो ताकि क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके। द सेम इज योर फीचर सेक्शन। अगर आपका फीचर सेक्शन अवेलेबल नहीं है, यू नीड टू क्लिक ऑन द रिकमेंडेड एंड देन क्लिक ऑन दिस 8 फीचर सेक्शन। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह करना है, ओपन करना है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपने प्लस पे क्लिक करना है। यू कैन एड ए पोस्ट, न्यूज़लेटर, आर्टिकल, लिंक, मीडिया, एनी अदर। ये प्रीमियम के लिए है, आपके फ्री के लिए अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये अभी इतना इसका फायदा भी अभी तक कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने आप या पिक्चर ऐड कर सकते हैं या लिंक ऐड कर सकते हैं, और ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक टेक्निक है, टेक्निक में बताता हूँ आपको, टेक्निक में बताता हूँ आपको, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, इसमें आप ऐड क्या कर सकते हैं, अवार्ड्स ऐड कर सकते हैं या अपनी अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज अपनी ऐड कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का लिंक या फ्रीलांसिंग प्रोफाइल का लिंक। प्रोफाइल का लिंक, गिग का लिंक मैं नहीं बता रहा, प्रोफाइल का लिंक याद रखें। सर्टिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियो इंट्रोडक्शन करा अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हाय आई एम इश्तियाक एंड I'm working as a LinkedIn consultant with this company and इतना मेरा experience है, and I work with so many clients और and I can provide you these services। ठीक है, आप अपने पोर्टफोलियो के लिंक ऐड कर सकते हैं, लाइक Behance पर आपका पोर्टफोलियो, कहीं पे आपका पोर्टफोलियो है, यू कैन ऐड इट। आप क्लाइंट रिव्यूज ऐड कर सकते हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज यू नीड टू ऐड वीडियो रिव्यूज। आप इवेंट या एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट इनिशिएटिव कर सकते हैं, बेस्ट लिंक्डइन पोस्ट भी कर सकते हैं। गला खुश्क होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, बेस्ट आइडिया क्या है, बेस्ट आइडिया ये जो पहले आपने ये देखे ना, पहले 3 नजर आ रहे हैं, मैं किसी भी प्रोफाइल पर जाऊंगा पहले 3 नजर आते हैं, ये देखे ना, किसी भी प्रोफाइल पर जाऊंगा पहले 3, फिर मैं क्लिक करूंगा, नाउ इट्स, किसी भी प्रोफाइल पर जाऊंगा पहले 3, ये देखे ना, पहले 3, तो 3 का नंबर आपने याद रखना है। ठीक है, 5 अभी तक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बाकी जितने भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 ही आपको सेल करेंगे, तो पहले 3 पर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, तो अब पहले ये 3 होंगे। नंबर 1 नीड टू बी योर पोर्टफोलियो लिंक, सेकेंड नीड टू बी योर क्लाइंट रिव्यू, थर्ड नीड टू बी योर प्रोडक्ट या सर्विस या लिंक ऑफ फ्रीलांसिंग प्रोफाइल या वेबसाइट। चौथे में फिर आप लिंक्डइन पोस्ट डाल दे, अवार्ड डाल दे, सर्टिफिकेशन डाल दे, अपनी पिक्चर डाल दे, किसी इवेंट वगैरह की अवार्ड या अचीवमेंट आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आपने टेक्निक APP टेक्निक, अटेंशन पहले आपने क्रिएट करनी है पोर्टफोलियो लिंक के साथ, प्रूफ देना है उनको, एंड देन पिच करना है। अब ये देखें, ये देखें, पहले मैंने यहाँ पे देखें ना, अपने थोड़ा डिफरेंट है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मेरा गोल डिफरेंट है, लेकिन आप फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए ये किस तरह होना चाहिए। पहले पे ये देखे ना, मैंने फ्री गिफ्ट फॉर 9 to 5 फॉर कोचेस फ्रीलांसर 9 to 5 learn the exact system and process that made me earn $20,000 in the past 12 months from my consulting side hustle। ये देखे ना, मैं उनको वो कहते हैं ना दाना डाल रहा हूँ। ठीक है, उर्दू में कहते हैं ना कि आपने उनको पिच करना है, अपने आप को अटेंशन क्रिएट करनी है ताकि वो आगे प्रोफाइल पर जाएं। आपने हमें अपनी Behance की पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने प्रूफ उनको देने हैं। अब प्रूफ किस तरह है, अब ये देखें, मैंने तो अपने मास्टर क्लास पिच किया है, लेकिन अब मैं जाऊंगा और यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज हैं। ठीक है, दैट इज द प्रूफ। ठीक है, ये देखें, ये बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं। ठीक है, मेरे प्रोफाइल पर आप जाएंगे एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज। ठीक है, थर्ड थिंग इज आपने भी इस तरह करनी है, अपने क्लाइंट का कोई वीडियो रिव्यू डाल दे, पिक्चर रिव्यू डाल दे, अच्छी सी पिक्चर में कैनवा में जाएं, डिजाइन करें, पिक्चर लगाएं और वो लगा दें यहाँ पे। एंड देन थर्ड में फिर आपने पिच करी 1-to-1 लिंक्डइन ग्रोथ कॉल विद इश्तियाक मरवत। ठीक है, एंड आई चार्ज $120 per hour फॉर इट। ठीक है, सो लाइक 90 मिनट्स की पावर स्ट्रेटेजीज हैं, बट आई चार्ज $120 per hour। ठीक है, तो ये चीज है कि अब ये स्टेप बाय स्टेप मैं वो कर रहा हूँ। तो आपने भी इस तरह करना है, पहला पोर्टफोलियो का लिंक, नेक्स्ट वन इज योर सक्सेस स्टोरीज या क्लाइंट के रिव्यूज, थर्ड वन इज योर फ्रीलांसिंग का प्रोफाइल का लिंक डाल दे, वेबसाइट का लिंक डाल दें,
कोई भी 1-to-1 कंसल्टिंग कॉल डाल दें, ठीक है, एंड a lot of ideas, ठीक है। लेकिन ये जो सबसे बेहतरीन टेक्निक है, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली पिच करेंगे उसको, डायरेक्टली उसको सेल करेंगे, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने पहले पोर्टफोलियो पर ध्यान देनी है। अच्छा, एक और चीज बताओ, एक और चीज याद रखें, टाइम में ज्यादा ले रहा हूँ और कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने सीखना है इन सब चीजों से, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। वरना एक सेशन 2 घंटों का था, मेरे ख्याल में ये चला जाएगा 2.5 घंटे तक, ठीक है। अच्छा, आप जब भी क्रिएटर मोड ओपन करेंगे, तो जब क्रिएटर मोड आप ओपन करेंगे तो आपका जो फ्री फीचर सेक्शन है वो ऊपर आ जाएगा, और ये एक्टिविटी सेक्शन ऊपर आ जाएगा, और आपका जो समरी है वो नीचे चली जाएगी। अगर आप क्रिएटर मोड ओपन नहीं करेंगे तो अभी आप प्रोफाइल से अपने देख लें, तो आपका अबाउट सेक्शन ऊपर होगा, फिर फीचर सेक्शन होता है, फिर सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो यू नीड टू एक्चुअली attract people to using picture, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट, लिंक्स वगैरह, और फिर पिक्चर, ठीक है। इस तरीके से आपने अट्रैक्ट करना है उसको। अच्छा, ये भी आप यकीन करें, ये सारी चीजें मैंने खुद डिजाइन की, मतलब कोई भी, मैं प्रोफेशनल अभी भी इतनी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं अपना मैसेज सही तरीके से कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने मगर घबराना बिल्कुल नहीं है, ग्राफिक डिजाइनर आप नहीं है, यू स्टिल हैव द कैनवा एंड यू कैन डू एवरीथिंग विद दैट, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइन कहेंगे यार ये तो हमारी जॉब्स के पीछे पड़ गया, एक तो एआई पड़ गया और एक ये भी पड़ गया, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज द अबाउट सेक्शन। अब आ गया अबाउट सेक्शन। अब अबाउट सेक्शन लोग क्या करते हैं, एक तो वो लिख लेंगे ना, ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनर और आई कैन डू दिस थिंग्स फॉर यू। नो यार, मिलियंस ऑफ ग्राफिक डिजाइनर यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू बी डिफरेंट, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व माई पेन, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे, अब अगर देखें पहली 3 लाइंस, मतलब फर्स्ट 3 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सी मोड नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टॉप स्किल भी नजर आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि पहले स्टार्ट आपने अपने क्लाइंट के पेन से करना है, ठीक है, प्रॉब्लम से करना है, अपनी इंट्रोडक्शन नहीं करवानी। वो ऊपर से पढ़ता नजर आ रहा है कि आप कौन है, क्या करते हैं, आपने कहना है फॉर एग्जांपल, डिड यू नो दैट ए वूफिंग 80% of social media lead come from LinkedIn, while just 20% of sales professionals and business utilize it to sell. Struggling to stand out in a crowded digital landscape and generate high quality lead that convert. अभी देखा ना, मैंने क्लाइंट का वो पेन पकड़ लिया, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो अभी बंदा जो भी सीईओ है, फाउंडर है, वो गौर से उसको पढ़ेगा, एंड देन ही और शी इज गोइंग टू क्लिक ऑन सी मोर। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि अच्छा आप बड़ी बेहतरीन जगह पे आए हैं, और आपके दुखों का जो मदावा है वो मेरे पास है, ठीक है, सारे यहाँ पे आपके जो भी क्लाइंट आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए, और मेरा क्या एक्सपीरियंस, फिर मैं अपनी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर मैं अपने रिजल्ट्स बताऊंगा, फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और आप मेरे से किस तरह मिल सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह जॉब कर रहे हैं तो आप डिस्क्लेमर भी देंगे कि मैं अपने, ये मेरे व्यूज़ हैं, जैसे पीटीसी है, जो पीटीसी में मैं जॉब करता हूँ उसकी कोई व्यूज़ नहीं है, ये मैं खुद ही अपने लिए काम करता हूँ, ठीक है। तो कोई उससे कोई वो नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आप ये भी अगर किसी कंपनी के साथ काम करते तो आप दे सकते हैं डिस्क्लेमर, ठीक है, तो कंपनी को भी इतराज़ नहीं होगा इस पर, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उनको अट्रैक्ट करते हैं, उसके पेन के बारे में बात करते हैं, फिर अपनी इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर अपनी सिमिलर एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि मैंने इतने क्लाइंट के साथ काम किया है, मेरे इतने एक्सपीरियंस हैं, और मैं आपको क्या कर सकता हूँ, एंड देन यू कैन आस्क देम टू बुक ए डिस्कवरी कॉल आल्सो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि डिस्कवरी कॉल क्यों होनी चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक, वो कहते हैं ना, क्लाइंट आपके पास आएगा, मैसेज करेंगे, कन्वर्जन 10% होती है, 10% आपके कन्वर्जन के चांसेस हैं। आप जब उसको कॉल पे ले जाएंगे, आपके कन्वर्जन के चांसेस 80% इंक्रीज हो जाते हैं। तो जितना आप उनके साथ पर्सनल पे जाएंगे, उतना आपका ट्रस्ट, वो आपका ट्रस्ट ज्यादा उसका डेवलप होगा, ठीक है। ये समरी में एक और चीज आई है, टॉप स्किल्स। तो टॉप स्किल में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने समरी ऐड करनी है, और यहाँ पे आप अपनी टॉप 5 स्किल्स ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल, आप डिजिटल मार्केटिंग है तो आप डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, जो भी आपकी टॉप 5 स्किल्स हैं वो आप ऐड कर दें, तो इस तरीके से वो यहाँ पे विजिबल होंगे, ठीक है। आपने ये ज़रूर ऐड करने हैं।
इसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस जो है वो आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप फाइवर अपवर्क भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आपका किसी और जगह भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने एक्सपीरियंस जरूर ऐड करना है। अच्छा, एक्सपीरियंस में हम लोग क्या करते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं ये कर सकता हूँ, नो, आप ये कर सकते हैं लेकिन आपने ये इस कितना किया है, ठीक है। ठीक है जी, तो यही है ना कि आपने क्या करना है कि एक्सपीरियंस आपने सही तरीके से लिखना है, और एक्सपीरियंस में आपने अपने जो भी फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर रहे हैं तो आपने कितने बैनर डिजाइन किए, कितने पोस्टर डिजाइन किए, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे, कितने आपने कैंपेन चलाए हैं, उनके की रिजल्ट्स क्या थी, कितने क्लाइंट के साथ काम किया है। तो आपने इस तरीके से इतनी डिटेल में भी नहीं लिखना, लेकिन आपने अपने रिजल्ट्स वगैरह मेंशन करने, अचीवमेंट्स मेंशन करनी है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं कि फाइवर पर मैं फ्रीलांसर हूँ। मेरे भाई कौन से फ्रीलांसर हो, आपने करना है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एट फाइवर, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के साथ काम नहीं करते, अगर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग पर काम करते तो आप फाइवर अपवर्क ऐड कर सकते हैं। एक चीज मैं बताऊं, आपने लिंक्डइन को एज ए कंपनी कभी ऐड नहीं करना, वरना आपके प्रोफाइल के ब्लॉकिंग के रिस्ट्रिक्शन के जिम्मेदार आप खुद होंगे। लिंक्डइन को आपने एज ए कंपनी बिल्कुल ऐड नहीं करना, और आप फाइवर अपवर्क को फ्रीलांसर को ऐड कर सकते हैं। फाइवर अपवर्क बहुत ज़्यादा है हर जगह पे, आपको आपको पता भी होगा, ठीक है। तो आपने उसको नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है कि इसमें यहाँ पे आपने क्या करना है कि मीडिया ज़रूर ऐड करना है, पिक्चर्स, सक्सेस स्टोरीज आपने ज़रूर ऐड करनी है। ये देखिए मैंने ऐड की है, ठीक है, रिव्यूज़, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने ऐड की है, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर इस तरीके से ऐड करना है। अच्छा, इसके बाद आपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पीटीसीएल के हैं, मैं पीटीसीएल में ये देखिए ना सारा कुछ मैंने ऐड किया है, ठीक है। जितने भी सेशन मैंने अरेंज किए हैं, ठीक है, डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम्स, डिजिटलाइजेशन, एनुअल डेज, सब कुछ ये देखें ना। तो ये सारी चीज़ें आपने भी ऐड करनी है, ठीक है। तो अगर आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन पिक्चर्स आपने ज़रूर ऐड करने हैं, इससे ट्रस्ट बढ़ती है, ठीक है। जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड मुझे में देते तो वो सारी चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, एजुकेशन आप ऐड कर दें, जो भी आपकी एजुकेशन है, एमएस है, बीएस है, इंटरमीडिएट भी आप ऐड करना चाहते कर लें, नहीं करना चाहते कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो टॉप एजुकेशन वो आप ऐड कर दें। इसके बाद आपने कोई मिनी डिग्री की है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स की कोई आपने डिग्री की है, तो वो भी आप एजुकेशन में ऐड कर सकते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड वो सर्टिफिकेशन में ऐड करें, क्योंकि वो आप एजुकेशन में आप ऐड करें, ठीक है। इसके बाद लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस आप ऐड करें। लाइसेंस सर्टिफिकेशंस आप रेलेवेंट ऐड करें, कोई भी इधर उधर की ऐड ना करें, ज़्यादा लाइसेंसेस नहीं बल्कि रेलेवेंट लाइसेंसेस। और ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन स्टिल इट्स गुड, ट्रस्ट लोगों का डेवलप होता है। प्रोजेक्ट्स ना भी ऐड करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वॉलंटियरिंग आपने की है, ठीक है, सही है, ऐड करें, नहीं की तो छोड़ दें। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे 50 स्किल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, ये तीर तो मार लेते हैं कि 50 स्किल्स ऐड कर दिए मैंने, ओ बड़ा ही मैंने तीर मार दिया जनाब। लेकिन जब मैं इसके स्किल सेट देखूंगा तो पहले पे लिखा होता ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन पहला जो स्किल उनका टॉप स्किल होता है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। फिर इसके बाद स्किल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर इसके बाद स्किल होता है एक्सेल, और बेचनी है आपने ग्राफिक डिजाइनिंग। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपकी रैंकिंग भी नहीं बढ़ेगी, और आपकी जो भी स्किल सेट उस पर रिकमेंडेशन भी नहीं आएगी, और आपको कोई देखेगा भी नहीं। और वो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 50 स्किल्स ऐड करने हैं, और इन 50 स्किल्स में आपने इनको जब आप ऐड कर लें, रेलेवेंट स्किल्स ऐड करने हैं। चैट जीपीटी अवेलेबल हैं, अपनी अपने एरियाज मेंशन कर दें, और अपने टॉप आपको 50 स्किल्स आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन रेलेवेंट स्किल्स होने चाहिए। अब जब आप स्किल्स ऐड करें तो अपने रिऑर्डर पर क्लिक करना है, और पहले 3 तो आपके टॉप स्किल्स होने चाहिए। जिस तरह मेरे सेल्स नेविगेटर है, कंटेंट मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। 3 के बाद फिर आपने फिर भी रैंडम नहीं ऐड करने, बल्कि जो बाकी 7 है अप टू 10, 4 to 10, फिर भी वो रेलेवेंट होने चाहिए, और बाकी फिर आप रैंडम ऐड कर दें। रैंडम मीन्स, लेकिन वो भी सारे 50 रेलेवेंट होने चाहिए, लेकिन
पहले जो टॉप 10 है वो आपके टॉप रेलेवेंट होने चाहिए, आपके वो स्किल होने चाहिए जिसको आप बेच रहे हो, जिसको आप सेल कर रहे हो, ठीक है। आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांडिंग आप कर सकते हैं, कोई टूल आप यूज कर सकते हैं, एडोबी फोटोशॉप, ठीक है, वो भी आप कैनवा डिजाइनर वो आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यूर, लेकिन आपने स्पेसिफिक मेंशन करने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर आएगा, ठीक है, इधर गया आरिफुल्लाह भाई का प्रोफाइल, कनेक्ट तो है ना, जैसे ना कनेक्ट ना हो। अच्छा जी यार मेरे ख्याल में बोर हो गए, मैं कोई कमेंट एक मिनट मैं आपको अभी जगाते हैं आप सबको, ये देखे ना। अब जस्ट गिव मी 1 मिनट, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें प्लीज, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि बोर, माइक ऑन करें, ठीक है, ठीक है। अभी गपशप लगाते हैं 1 मिनट के लिए। अच्छा, मैं प्रोफाइल पर आऊंगा, ये आरिफुल्लाह के प्रोफाइल पर आ गया, तो यहाँ पे इंडोर्स का लफ्ज होता है। इंडोर्स मीन्स, जब मैं क्लिक करूँ इंडोर्स मीन्स कि मैं लिंक्डइन को बता रहा हूँ आसान ज़बान में कि मैं जानता हूँ कि आरिफुल्लाह को डिजिटल मार्केटिंग आती है और मैं आपको इंडोर्स करता हूँ, प्रूफ देता हूँ, ठीक है। इंडोर्समेंट जितनी ज़्यादा होगी आपका उसी स्किल सेट के लिए विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, कोई भी आपको सर्च करेगा इस स्किल सेट को तो आपका नाम टॉप पे आएगा अगर आपकी इंडोर्समेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपने इंडोर्समेंट ज़रूर लेनी है। अब इंडोर्समेंट अगर आपको रेलेवेंट लोग दें या टॉप लोग उस फील्ड से दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक दूसरे से इंडोर्समेंट इंगेज भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी भी ग्रुप में शामिल हैं, ठीक है, उसको कनेक्ट करें, जब आप किसी को कनेक्ट करें तो उसको उसके प्रोफाइल पर जाएं और उसके स्किल सेट को इंडोर्स कर दें, ठीक है, लाइक जिस तरह मैंने किया, और उसको भी मैसेज आ जाएगा, फिर आप उसे मैसेज कर देंगे काइंडली मैंने आपको स्किल इंडोर्स कर दिया, तो अगर आप रिटर्न में मेरे स्किल इंडोर्स कर दें तो आई वुड बी रियली ग्रेटफुल, ठीक है। तो आपने ये जरूर करना है। अच्छा, फाइनल वन इज रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट। रिकमेंडेशंस क्या होते हैं, उस दिन थोड़ी कहानी सुना देता हूँ। उस दिन मैं गया था रॉयल तबाक, हाँ बिल्कुल रॉयल तबाक, ये था इधर इसमें आई थिंक F10 में कहाँ पे, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखी, मैंने कोई रिव्यू रीड नहीं किया, और अपने जीएम के साथ और एक दो और कुलीग भी थे, चले गए। बड़ा ही महंगा, उनका बड़ा ही ज़बरदस्त है उनका प्लेटर, और ये है वो है, और ठीक है। अक्सर हम जाते रहते हैं इस्लामाबाद में, तो जैसे ही हमने कहा ट्राई कर लेना, तो बड़ा ही मैंने कोई रिव्यू रीड नहीं किया और बड़ा ही खराब हो गया। खाने को खराब नहीं करने कहना चाहिए, लेकिन उनको होटल बंद कर देना चाहिए, ठीक है। मैंने बड़ा अच्छा खासा रिव्यूज भी दे दिए माशाल्लाह, ठीक है, नेगेटिव स्टार वाले, मतलब 1 स्टार वाले, नेगेटिव स्टार तो होता नहीं है। तो बात ये है कि मैंने रिव्यू रीड नहीं किए हैं, तो मुझे बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ और शर्मिंदगी भी हुई अपने जीएम के सामने। दूसरी बात ये है कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये रिकमेंडेशन आर जस्ट लाइक रिव्यूज। जिस तरह मैंने रिव्यू रीड नहीं किए, तो हर बंदा रिव्यू, आप कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, फीचर्स देख लेते हैं, ये फीचर है, ये स्मार्ट वॉच के ये फीचर्स हैं, इतने वो हैं, और ये कलर्स हैं, और ये सारे, फिर आप सब कुछ डिसाइड करके ये वाली स्मार्ट वॉच मैंने लेनी है, लेकिन फिर आप जाते हैं रिव्यूज पर और रिव्यू देखते हैं, रिव्यू कोई नेगेटिव स्टार रिव्यू मिल जाता है, पर आप कहते हैं यार इसमें कोई मसला है, ठीक है। फिर आप कॉल करते हैं आरिफुल्लाह को, आपका दोस्त है, आरिफुल्लाह यार मैंने ये स्मार्ट वॉच खरीदनी है, तो आप क्या कहते हैं, यार ये वाली छोड़ दो, मैंने 1 हफ्ते पहले ये खरीदी थी और ये बड़ी बेहतरीन है। वो स्मार्ट वॉच शायद महंगी भी हो, लेकिन आप आरिफुल्लाह के वर्ड्स को ट्रस्ट करते हैं। द सेम इज रिकमेंडेशंस और रिव्यूज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू आर ए डिजिटल प्रोडक्ट हियर, ठीक है, और हर डिजिटल प्रोडक्ट के ऑनलाइन रिव्यूज होते हैं। अगर आपको रिव्यूज नहीं मिले या आपको रिव्यूज ऐसे वैसे मिले हैं, ठीक है, तो आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, और जब आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा तो इट मींस दे आर नॉट गोइंग टू सेल बाय योर सर्विसेज, ठीक है। तो आपने रिकमेंडेशन जरूर लेने हैं। आपके प्रीवियस जितने भी क्लाइंट्स हैं, फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं, ऑनलाइन कहीं पे मिले हैं आपको, you need to go like connect with them, ask them for a review on LinkedIn in this way, ask for a recommendation, type their name, पहले आपने उनके साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट होंगे पहले उनके साथ, एंड देन ask for recommendation, ठीक है।
and also you need to be generous, you need to give reviews to different people, ठीक है. और I have given different reviews to different people, कुछ 70 तो मैंने दिए होंगे, ठीक है. You need to be generous, ठीक है. रिव्यूज जब आप देंगे तो आप किसी भी प्रोफाइल पर कोई अम्फाल मैं इसका प्रोफाइल विजिट कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पर मेरे प्रोफाइल का बैक लिंक क्रिएट हो गया, ये देखिए बैक लिंक क्रिएट हो गया. कोई इसके प्रोफाइल पर आएगा, रिकमेंडेशन, अच्छा इश्तियाक ये सर्विस प्रोवाइड करता है, मेरे प्रोफाइल पर आएगा, ठीक है. एंड देन आई जस्ट गॉट अ बैक लिंक, ठीक है. तो आपने रिकमेंडेशंस रिसीव भी करने और देने भी हैं, ठीक है. बाकी चीज़ें जो है कोर्सेज, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर दें ना करें कोई मसला नहीं, ठीक है. बट ये जो चीज़ें मैंने बता दी. एंड द फाइनल थिंग जो मैं मिस कर रहा था, दैट इज़ द यूआरएल. यूआरएल बहुत से लोग क्या करते हैं, उनका रैंडम यूआरएल होता है. तो यूआरएल जो है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट जस्ट लाइक वेबसाइट यूआरएल और आपकी डिजिटल प्रेजेंस है तो आप अपना फुल नेम लिख सकते हैं. इस तरह मेरा, जिस तरह मैं इश्तियाक मरवत के ब्रांड से अपने आप को सारा हर जगह पे मेरा यही नाम चल रहा है, ठीक है. तो मैं इश्तियाक मरवत का मैंने ऐड किया है. इस तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपने नाम के साथ अपनी स्किल सेट ऐड कर सकते हैं, इश्तियाक मरवत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये भी कर सकते हैं. या इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह आरिफुल्लाह ने किया है, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है. तो इस तरह भी आप कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन 3 चॉइसेस हैं आपके पास, लेकिन आपने वो रैंडम नंबर वाला नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है. तो आपने वो वाला बिल्कुल नहीं करना. चेक करते हैं किसी ने किया है कि नहीं. ये देखिए ना, नाम ऐड किया है, ये भी नाम है, ठीक है. और एंकर आसम ऐड दी. तो आपने वो डिफ़ॉल्ट वाला नहीं करना. तो डिफ़ॉल्ट में 5-6 डिजिट्स भी आते हैं, वो अपना नहीं करना, ठीक है. तो दिस हाउ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन योर प्रोफाइल यूआरएल. अच्छा, ये हो गई प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. ये बहुत ज़रूरी है. मैंने इसलिए 1 घंटा 10 मिनट लगाए ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि ये पहला स्टेप है. ये आपकी ड्रेसिंग है. ड्रेस आप सही करेंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे तो लोग आपके साथ थोड़ा सही तरीके से मिलेंगे, ठीक है. तो आपके प्रोफेशनलिज्म के बड़ा ज़रूरी है, ठीक है. तो यू नीड टू ड्रेस योर सेल्फ रियली वेल. अब आएंगे टूवर्ड नेटवर्किंग एंड देन टूवर्ड्स कंटेंट मार्केटिंग एंड टूवर्ड्स द जॉब सर्चिंग एंड फाइंडिंग क्लाइंट्स, ठीक है. तो थोड़ा एक 3-4 मिनट का ब्रेक करते हैं. लेकिन इससे पहले आप लोग ये मुझे कोई भी आपने माइक ओपन नहीं करना. वी डोंट हैव मच टाइम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. और आपने क्या करना है कि जस्ट इन द कमेंट्स की जो भी मैं बता रहा हूँ तो वो समझ आ रहा है, जस्ट इन द चैट सेक्शन, या बोर हो रहे हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त. ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अच्छा जी. अच्छा ये बताएं, लिंक्डइन पर कितने लोगों ने पोस्ट किया है और इंस्टाग्राम पर, ये बताएं आप. आरिफुल्लाह को कितने लोगों ने टेक किया है? अच्छा, ये पता नहीं, ये हमारा पख्तून भाई भी है इसमें. अच्छा जी, ठीक है, बहुत से होंगे. अच्छा जी, अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त है. अच्छा जी. अच्छा, चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. जस्ट गिव मी 1 मिनट. अच्छा जी. अब आते हैं टूवर्ड नेटवर्किंग, ठीक है. नेटवर्किंग में हम लोग, मेरा माइक ऑन है, ठीक है, स्क्रीन शेयर्ड है, ओके परफेक्ट. अच्छा, नेटवर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, मैं जाऊंगा इधर नेटवर्किंग में,
बहुत से लोगों ने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे हैं। और यहाँ पे जो अमूमन में जब पहले मैंने ज्वाइन किया था, मुझे जब सारे लोग मिलते थे कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, और फिर मैं 70-80 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देता था, फिर मुझे लिंक्डइन की तरफ से एक मैसेज आ जाता था कि आपका अकाउंट हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। और मैं 70-80 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देता था एक टाइम में, और 2-3 भी एक्सेप्ट नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? कि मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट इस तरीके से भेजता था। ये देखें ना, कोई भी पर्सनलाइजेशन नहीं है, कोई भी, ये देखें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लोग मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लेकिन उसमें गलती क्या है मैं बताता हूँ। कनेक्शंस जो हैं, एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने ये कोटेशन सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर उसमें अभी जस्ट इन केस एक कनेक्शन को $1 से कंपेयर करिए एक फॉलोअर को, तो मेरा भी 55-66,000, इट मीन्स कि मेरे पास $56,000 है। ये भी कम डॉलर है, लेकिन स्टिल एक कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, और उन 56,000 में मेरे पास सीईओज भी हैं, फाउंडर्स भी हैं, आरिफुल्ला जैसे एक्सपर्ट लोग भी हैं, ठीक है, जो पूरी की पूरी कम्युनिटीज को लीड करते हैं, इन लोगों को नॉलेज शेयर करते हैं। सो आपने अपने नेटवर्क को ग्रो करना है, 30,000 तक आप लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने जो गलती की थी जब हम नेटवर्क ग्रो कर रहे थे, जिसमें अभी मेरे पास कुछ अवेलेबल है, तकरीबन मेरे कितने लोग 26,000 हैं और 30,000 मैक्सिमम है। इट मीन मेरे पास कुछ 3,500 लोग मैं आगे ऐड कर सकता हूँ, बाकी मैं कुछ फिर डायरेक्टली मैं ऐड नहीं कर सकता। इसमें गलती क्या है कि मैंने हर रैंडम बंदे को ऐड किया है, वो अभी शायद एक्टिव ना हो, तो मेरे अकाउंट पर वो बोझ है, इनएक्टिव होगा, मुझे विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपने क्या करना है कि एक्टिव लोगों को ढूंढना है और उन्हें कनेक्ट करना है। अब एक्टिव लोग आपने किस तरीके से ढूंढने हैं? एक्टिव लोग आपने क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करेंगे, आपने क्या करना है, पीपल पे क्लिक करना है। पीपल पे क्लिक करेंगे तो आपको 937 मिलियन लोग मौजूद हैं। अब मैं क्या कर रहा था, कनेक्ट कनेक्ट फॉलो कनेक्ट, ठीक है। तो ये गलती है। आपने क्या करना है कि पहले यहाँ पे अब ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है। फर्स्ट वो जो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट हो, सेकंड थर्ड जो आपके फर्स्ट कनेक्शन के साथ कनेक्शन हो या सेकंड कनेक्शन के साथ कनेक्शन वो, ठीक है। तो फर्स्ट इज जस्ट लाइक योर फेसबुक फ्रेंड, ठीक है, या डायरेक्टली इंस्टाग्राम फॉलो, वो आप कर सकते हैं, वो उसको आप कह सकते हैं। आपने क्लिक करना है सेकंड या थर्ड पे। फर्स्ट तो ऑलरेडी आपके साथ कनेक्ट है 900। अब आपने क्या करना है, लोकेशंस पे। लोकेशंस आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द मैं यूनाइटेड स्टेट्स करता हूँ, सॉरी शो। इसके बाद आपने क्या करना है कि करंट कंपनी आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यूर। आपने क्या करना है, एक्टिव लोग, दो चीजें हैं इसमें। एक है कि दे आर टॉकिंग अबाउट विच एरिया। आप उन लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जो फॉर एग्जांपल दे टॉक अबाउट एआई कर लेते हैं, दे टॉक अबाउट एआई, ठीक है, और दे लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड दे आर दी, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ फाउंडर है, टॉक अबाउट एआई, दे लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन शो रिजल्ट्स। कितने लोग आ गए? 2300। अभी भी ज्यादा है, ठीक है, कम करने हैं हमने। देन यू नीड टू क्लिक ऑन फॉलोअर ऑफ। आपने कोई भी इस तरह का ऐसा बंदा ढूंढना है, ठीक है। एक मिनट, ये कभी काम करता है कभी नहीं करता, मैं चेक कर दो कोई मेरा फॉलोअर भी है। एक बंदा उसमें मेरा फॉलोअर है, बड़े शुक्र है, कोई फॉलोअर यूएस की तरफ से, ठीक है। चलो कोई इस तरह करते हैं, कोई यूएस का बंदा ढूंढते हैं, जस्टिन वेल्श। और यार हो जा, ठीक है, 2300 लोग आ गए। अब मैं एक और टेक्निक आपको बताता हूँ। जस्टिन वेल्श, ये एक क्रिएटर है, ठीक है, एंड 162 है, ठीक है।
तो ये देखें, अब ये जो फॉलोअर किसी का होगा, ये देखें फाउंडर भी है, ये याद रखें, एआई के बारे में बात करता है और फाउंडर भी है। इट मीन्स दे आर द एक्टिव पीपल एंड नाउ यू कैन कनेक्ट विद देम, ठीक है। अब एक और चीज करते हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ, शो रिजल्ट्स, थोड़े ये सारे फिल्टर हटा देते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन। पीपल पर क्लिक करेंगे एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज बूलियन सर्च। बूलियन सर्च आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। बूलियन जो हम यूज करते हैं एंड आर नॉट वाले, ठीक है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे लोग चाहिए जो फाउंडर भी हो और ब्रांडिंग के बारे में, ब्रांडिंग से ताल्लुक रखते हो या मार्केटिंग मतलब ब्रांडिंग एरिया उसके उससे ताल्लुक रखते हो, ठीक है। आई क्लिक ऑन द फाउंडर एंड, ठीक है, इस तरीके से आपने बूलियन सर्च लिखनी है। देन यू नीड टू क्लिक ऑन द कनेक्शन सेकंड एंड थर्ड, ये देखें, देन यू देखें ना 625 के हो गए, ठीक है, 6,25,000 आ गए। देन यू नीड टू क्लिक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, मुझे तो यूएस के लोग चाहिए, शो रिजल्ट्स, या आप कोई भी कनाडा भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कनाडा और कोई भी आप यूनाइटेड किंगडम भी कर सकते हैं, ठीक है, शो रिजल्ट्स। देन यू नीड टू, ये देखें ना, अब 2,70,000 आ गए। देन यू नीड टू क्लिक ऑन दी टॉकिंग अबाउट लीडरशिप या ब्रांडिंग या मार्केटिंग, दोनों कर लेते हैं। 6,000, ये देखें ना, ये भी एक्टिव लोग आपको मिल गए। इट मीन्स दे आर द फाउंडर, दे आर इन द ब्रांडिंग, एंड देन यू आल्सो कैन पिक वन मोर थिंग एंड देन इज द इंडस्ट्री, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप किस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, किस इंडस्ट्री के लोग के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, क्लिक ऑन दिस वन, 668। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको सर्च करना है और ये सारे फिल्टर आपके पास अवेलेबल हैं। इसके बाद आप एक और भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस वन, थोड़ा मुश्किल वाला यूज करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं, कोई अप्लाई होते हैं कि नहीं चेक करते हैं। फेसबुक फाउंडर भी हो और इसके साथ फेसबुक एड्स या गूगल एड्स के बारे में बात कर रहा हो या वो उसका एक्सपर्ट भी हो, ये देखिए ना 10 लोग हैं सिर्फ, फाउंडर एंड दे आर इनटू फेसबुक एड्स एंड आल्सो इनटू द गूगल एड्स आर गूगल एड्स, ठीक है। तो टॉक्स अबाउट, तो ये आप मुख्तलिफ तरीके से, ये देखें सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं आपके पास, कंपनी भी कर सकते हैं, स्कूल भी कर सकते हैं, एंड अब आपके पास ये बंदा या बंदी आपको मिल गया, ठीक है। देन यू नीड टू विजिट देयर प्रोफाइल, प्रोफाइल विजिट किया, थोड़ा प्रोफाइल रीड करें, डायरेक्टली कनेक्ट ना करें या फॉलो भी ना करें डायरेक्टली, ठीक है, प्रोफाइल रीड करें, थोड़ा कोई ना कोई पोस्ट वगैरह पढ़ लें, प्रोफाइल में क्या चीज़ें हैं, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन, यहाँ पे कनेक्ट बटन मेंशन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है या आपने यहाँ पे आना है मोर पे एंड क्लिक ऑन कनेक्ट प्लस। अब हम क्या करते हैं, सेंड पे, और अच्छा जी मैं आ गया आपके प्रोफाइल में और आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दें जिस तरह इन लोगों ने मुझे भेजा है, ठीक है, डायरेक्टली सेंडिंग, क्लिक ऑन द कनेक्शन रिक्वेस्ट। आपने क्या करना है, प्रोफेशनल तरीके से एड इन पे क्लिक करना है और मैसेज लिखना है, क्या नाम था इसका, Jesse. Hi, Jesse. I just visited your profile and found that you work in the digital marketing industry. I also work in the same industry. I would love to connect with you to learn from your experiences. इस तरीके से आपने एक अच्छा सा प्यारा सा प्रोफेशनल मैसेज लिखना है। आप नहीं लिख सकते, चैट जीपीटी आपके लिए हाजिर है, चैट जीपीटी को बताएं मैंने जेसी के साथ कनेक्ट करना है, वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, एंड जस्ट राइट ए शॉर्ट मैसेज, इनवाइटेशन मैसेज फॉर मी, जो 300 कैरेक्टर्स के अंदर हो, विद इन 100 कैरेक्टर्स लिमिट, ठीक है, सेंड करें एंड योर कनेक्शन रिक्वेस्ट चांसेस, जो एक्सेप्टेंस चांसेस आपके हैं वो 99% तक बढ़ जाएंगे। कोई भी मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट इस तरह बेचता है तो बहुत कम है कि मैं किसी का कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, अगर उसने मेरे पास डायरेक्टली सेलिंग न की हो, ठीक है। तो ये देखें ना जितने भी बाकी हैं इधर, दे हैव नॉट सेंड मी समथिंग, क्यों आप कनेक्ट कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। अब
आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट इस तरीके से भेजने हैं और इस तरीके से आपने अपने नेटवर्क वो फाइंड करने हैं, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल ऑन लिंक्डइन, ठीक है। इसके बाद जो एक चीज आती है दैट इज दी आपके प्रोफाइल में जस्ट गिव 1 मिनट। अच्छा जी, रिप्लाई, अब मैं रिप्लाई जो भी आएगा ना, आप चैट जीपीटी से कहें कि मुझे ये रिप्लाई आया है, ठीक है, और वो आपको रिप्लाई भी बता देगा कि आपने क्या रिप्लाई देना है। बड़ा चैट जीपीटी बड़ा आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, फ्री वाला, कोई पेड वेड लेने की जरूरत नहीं है। पेड आप पैसे जब कमाए फिर ले लें, ठीक है। फ्री में आपको बहुत से काम निकल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं टूवर्ड्स दी आपके इंगेजमेंट। इंगेजमेंट जो है ये वो वाली इंगेजमेंट नहीं है, ये कमेंटिंग इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कमेंट्स वगैरह करना। कमेंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फॉर एग्जाम्पल अभी 500 फॉलोअर्स हैं और आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो 2-3 लोग लाइक कर देंगे उस पोस्ट को, कोई आएगा ही नहीं, फिर आपकी विजिबिलिटी कहाँ पे क्रिएट होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखें, और जो पोस्ट आपको रेलेवेंट लगे, आपको अच्छा पोस्ट लगे, आपने उसको रीड करना है। जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइक एनी ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन एंड जस्ट राइट ए कमेंट। लेकिन कमेंट आपने क्या करना है, कमेंट आपने किस तरीके से करना है, दैट कमेंट नीड टू बी प्रोफेशनल वन, नॉट लाइक थैंक यू फॉर शेयरिंग वेरी वेल सेड, ये नहीं, ठीक है। प्रोफेशनल कमेंट करना है और एक डिस्कशन टाइप स्टार्ट करनी है, ठीक है। और आपने 30 कमेंट्स रोजाना करने हैं, तब आपकी विजिबिलिटी क्रिएट होगी। तो आपने क्या करना है, जिन लोगों के प्रोफाइल पर मतलब कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं या आपसे रेलेवेंट है, उनके प्रोफाइल्स पर, उनके फीड्स पर आपने जाके यहाँ पे आपने 30 कमेंट्स रोजाना करने हैं। अच्छा, एक और चीज़, एक तो कमेंट करने हैं आपने, एक दूसरी चीज यहाँ पे जो आपने फॉर एग्जांपल ये देखे ना, ये मेंशन है कि ये कोई अंग्रेज हैं और आपने, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उस इसके कमेंट पे एक तो आपने खुद कमेंट करना है और एक इसके कमेंट में 3-4 इस तरह के कमेंट्स आपने रीड करने हैं और उसको रिप्लाई भी आपने करना है। इससे क्या होगा, आपके फॉलोअर्स तो 500 होंगे लेकिन आपकी विजिबिलिटी जो है वो ग्लोबली क्रिएट होगी, क्योंकि इस प्रोफाइल पर और लोग भी आएंगे इस पोस्ट पर, वो आपके कमेंट को देखेंगे, वो आपके रिप्लाईज को देखेंगे, और ये जो रीडर अतर है वो भी आपके रिप्लाई कमेंट को देखेगा, एंड योर कमेंट इज गोइंग टू बी विजिबल टू मोर पीपल, और बाहर के लोगों को भी विजिबल होगा। तो आपने क्या करना है कि 30 कमेंट जरूर करने हैं और कम से कम एक 10 पोस्टों में कुछ रिप्लाईज भी आपने करनी है जरूर। अगर आप ये, और ये टोटल जो आपसे टाइम लेगा, मैक्सिमम टाइम लेगा तो आपसे 1-1.5 घंटा लेगा। और आप अगर फ्रीलांसिंग जर्नी के लिए 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंगेजमेंट में, जस्ट फॉरगेट अबाउट एनी ग्रोथ ऑन लिंक्डइन, ठीक है। कमेंटिंग इंगेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, ग्रोथ के लिए। तो आपने कमेंट कम से कम 30 कमेंट और 20 रिप्लाईज जरूर करने हैं दिन में। एक आधा घंटा 45 मिनट सुबह निकाल लें, 45 मिनट शाम को निकाल लें, और आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है। नेक्स्ट थिंग इज दैट अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि एक मिनट, इंगेजमेंट हो गई, आप कमेंट कर रहे हैं, तो इसके बाद जो चीज़ आती है जो आपके, ये तो आपको विजिबिलिटी देगी, आप मुझे प्रोफाइल पर जाएंगे, आप विजिबल होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको विजिबिलिटी क्रिएट होगी। लेकिन आपने कमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद भी कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। कंटेंट आप क्रिएट नहीं करेंगे देन यू आर गोइंग टू वेस्ट अपॉर्चुनिटीज। अब कंटेंट किस तरह क्रिएट करना है वो जस्ट मुझे 1 मिनट दें, मैं फाइल ओपन करता हूँ।
आपको अगर लिंक्डइन पर फ्री मार्केटिंग, क्योंकि लिंक्डइन पर जितने भी मैंने भी फॉलोअर ग्रो किए, मैंने प्रीमियम अभी 1 साल 1.5 साल पहले लिया है जब मुझे ज़रूरत पड़ी, एल्स मेरे प्रीमियम का कोई मैंने ग्रोथ, मतलब प्रीमियम ने मुझे कोई ग्रोथ नहीं दी, ठीक है। प्रीमियम से एक मुझे फ़ायदा होता है कि मेरा अकाउंट कम रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि मैं बहुत ही प्रोफाइल पे विजिट करता हूँ, ठीक है, तो उससे भी रिस्ट्रिक्शन होती है प्रोफाइल की, तो वो कम होता है, ठीक है। बाकी प्रीमियम का मुझे अभी तक, मतलब हाँ, मैं सेल नेविगेटर यूज़ करता हूँ अभी बहुत ज़्यादा, तो उससे मुझे फ़ायदा हो, मैं अभी B2B सेल्स के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन आपने फ्री प्रोफाइल के साथ, फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, इंगेजमेंट कर सकते हैं जितनी आप करना चाहें, कोई लिमिट नहीं है। स्पैमिंग आपने नहीं करनी, लेकिन जितनी आप रियल तरीके से इंगेजमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट आपने क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको फ्री में आपका प्रोफाइल ग्रो करेगा। और जितनी भी मैंने 55-56,000 फॉलोवर ग्रो किए हैं, मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, सिवाय ये प्रीमियम के भी मैं 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं खर्च कर रहा हूँ 17-18 हज़ार रुपये पर मंथ, ठीक है। लेकिन आपने कंटेंट क्रिएट करना है, और कंटेंट आपने किस तरीके से क्रिएट करना है, ये देखिए मेरा प्रोफाइल। आपने क्या करना है, ये देखें, आप मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और ये देखें ना, पोस्ट्स, वीडियोस, इमेजेस, आर्टिकल्स, न्यूज़ लेटर्स, मुख्तलिफ़ किस्म का। ये देखें वीडियोस, ठीक है, मुख्तलिफ़ वीडियोस मैंने क्रिएट की हैं। आप इमेजेस भी कर सकते हैं, इमेज पोस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आपने अपना न्यूज़ लेटर ज़रूर स्टार्ट करना है। मेरा न्यूज़ लेटर है, 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं इसके, और आपने न्यूज़ लेटर ज़रूर स्टार्ट करना है। आपके इवेंट्स हैं, आप इवेंट्स कर सकते हैं। अगर आप मेजर पॉडकास्टर वगैरह हैं तो अपनी कोई वो है तो आप कर सकते हैं। एंड यू आल्सो नीड टू एड, और ये जो सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं, दैट आर दी कैरोसेल, देयर डॉक्यूमेंट पोस्ट, PDF पोस्ट, ये आपने करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो और आप सबसे ज़्यादा रीच इसकी आती हैं, और फिर इसके बाद इमेजेस की भी आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रीच जो मिलती है वो इसको मिलती है। और डिपेंडिंग अपॉन योर आपके जो भी गोल हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, लेकिन आपने इनमें से एक आपने क्रिएट करना है। अच्छा, लिंक्डइन पर आपने कंटेंट क्यों क्रिएट करना है? टू ग्रो योर पर्सनल ब्रांड, अपना नेटवर्क आपने ग्रो होगा, फॉलोअर्स आपको आएंगे, ठीक है, आपका बिजनेस ग्रो होगा, क्लाइंट्स आपके प्रोफाइल को देखेंगे, आपकी थॉट लीडरशिप ग्रो होगी। आप फॉर एग्जाम्पल अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के टेम्पलेट्स शेयर करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के टिप्स शेयर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निक्स शेयर करते हैं, स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, तो फिर आपको क्लाइंट ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, और लिंक्डइन बड़ी अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी देता है अगर आप मेहनत करते हैं। आप अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं कि आपने ये काम किया, ये अपनी एक टेम्पलेट डिज़ाइन की, ये कैंपेन डिज़ाइन किया, इतने आपको लीड्स मिले, आपकी विजिबिलिटी क्रिएट होगी, और आप विजिबिलिटी से, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, आप अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ठीक है। अब आपने कौन सा कंटेंट क्रिएट करना है? कंटेंट आपने निच ब्रॉड क्रिएट करना है, निच स्पेसिफिक क्रिएट करना है। अब किस तरह? आप डिजिटल मार्केटिंग है तो आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करनी है। डिजिटल मार्केटिंग का ये ट्रेंड है, ये है, ये स्ट्रेटजीज हैं, ये टिप्स हैं। फिर इसके बाद आपने निच स्पेसिफिक जाना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हैं, तो उसके बारे में आपने बात करनी है, उसके टेक्निक्स शेयर करने हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज उसके बारे में शेयर करनी है। आपने अपने सेलिब्रेटिंग या शो, आपके 1000 फॉलोअर हो गए, 2000 हो गए, आपने आपने एक $1000 का ऑर्डर आपने वो कंप्लीट कर लिया है, आपको 5 स्टार रिव्यूज मिल गए हैं, आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई अवार्ड मिल गया है, ठीक है, सर्टिफिकेशन मिल गई है, यू नीड टू सेलिब्रेट, यू नीड टू शोकेस दिस थिंग ऑन लिंक्डइन। ये सारी चीज़ शेयर करें। इंडस्ट्री में कुछ आ रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में AI टूल आ रहा है, AI कोई चेंज ट्रेंड आ रहा है, तो वो आपने शेयर करनी है। क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स बहुत ज़रूरी हैं, आपने पिक्चर रिव्यूज, इमेज वीडियो रिव्यूज आपने शेयर करने हैं। जनरल या मोटिवेशनल आप कोई एक हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल कोट शेयर कर दें, कोई इस तरह की वीडियो शेयर कर दें ताकि आपको व्यूज़ आएँ, ठीक है। विजिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोलेब्रेशन है। आरिफुल्ला और मैं इस मास्टर क्लास में कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, मुझे भी विजिबिलिटी मिल रही है, आरिफुल्ला को भी मिल रही है, लोग मुझे भी जान रहे हैं, आरिफुल्ला को भी, मेरे जो भी ऑडियंस है वो जान रही है, ठीक है।
तो कोलेब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉर कोलेब्रेशन का मैं बताऊं, अगर आपने लिंक्डइन पर ग्रो करना है तो कोलेब्रेशंस आर दी लाइफ ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन है आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। इंगेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, और कंटेंट क्रिएशन में कोलेब्रेशंस। आपने क्या करना है कोलेब्रेशन में, आपने क्या करना है कि आप कंटेंट क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल आप अच्छा कंटेंट लिख सकते, आप अच्छी कॉपी लिख सकते हैं, एंड आप एक दूसरा बंदा ग्राफिक डिजाइनर है, अगर आप कोलेबरेट करेंगे, एक कैरोसल क्रिएट करेंगे, और वो आप कंटेंट क्रिएट कर लेंगे, ग्राफिक डिजाइनर उसकी डिजाइनिंग अच्छे तरीके से एक कैरोसल क्रिएट कर लेगा, दोनों पोस्ट कर लेंगे, तो जस्ट इस चीज का इम्पैक्ट देके आपका ऑडियंस उसके ऑडियंस एक दूसरे को देखेगा, और फिर उन ऑडियंस का जो ऑडियंस है वो आएंगे, इंगेज करेंगे, और उनका जो ऑडियंस है वो भी इसको देखेगा, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, तो कहते हैं एक 1 + 1 मेक्स 11 नॉट 2, ठीक है। तो कोलैबोरेशन मेक्स 1 + 1 11 नॉट 2, ठीक है। आपने क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। आप कंटेंट किस तरह क्रिएट आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो तो चैट जीपीटी है। पहले ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको आइडियाज मिल सकते हैं। answerthepublic.com पे आपको आइडियाज मिल सकते हैं, पिंटरेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज मिल सकते हैं, ट्विटर से मिल सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको आइडियाज मिल सकते हैं, रेडिट, कोरा, फ्लिपबोर्ड, कंटेंट आइडियाज.io, और सबसे बेहतरीन आप प्रॉम्प्ट्स लिखना सीख लें, आपको चैट जीपीटी आइडियाज भी देगा, कंटेंट भी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन आपने इसमें पर्सनलाइज टच देनी है। अच्छा, कंटेंट कैलेंडर किस तरह होना चाहिए। आपने क्या करना है कि पहले मंडे को आपने टेक्स्ट या पिक्चर पोस्ट, खासकर टेक्स्ट या टेक्स्ट पिक्चर पोस्ट, इमेज वाली पोस्ट आपने क्रिएट करनी है, निच स्पेसिफिक या निच ब्रॉड। इसके बाद ट्यूसडे को आपने क्या करना है, निच ब्रॉड, ये 30 डेज आपने ये रिपीट करना है। तो निच ब्रॉड, ट्यूसडे को आपने कैरोसल क्रिएट करना है, निच ब्रॉड डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। निच स्पेसिफिक फिर आपने फेसबुक एड्स को थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं थोड़ा स्पेसिफिक हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट वीडियोस के बारे में कर दें, ठीक है, शॉर्ट वीडियो एड्स के बारे में कर दे, तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक कर, कोई टूल के बारे में कर दे, एआई टूल्स कौन से आ रहे हैं वीडियो एडिटिंग में, ठीक है, वो कर दे। इसके बाद आपने थर्सडे को सेलिब्रेट करना है, शोकेस करना है, अपने क्लाइंट का कोई रिव्यू शेयर करना है, वीडियो, कैरोसल या जिस टेक्निक में वो। फ्राइडे को आपने कोई कोलैबोरेशन की पोस्ट करनी है, अपडेट शेयर करना है, इंडस्ट्री ट्रेंड शेयर करना है। सैटरडे को थोड़े यूएस के क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़े मतलब लिंक्डइन पर कम ही होते हैं, अभी होते भी हैं लेकिन स्टिल बहुत कम, क्योंकि वो हमारे इधर नहीं होते, वो सैटरडे संडे को मनाते हैं, ठीक है। 5 दिन काम करते हैं, 5 दिन काम नहीं करते, और 2 दिन भी बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा ये है कि सैटरडे को आपने मोटिवेशन वगैरह पोस्ट लगानी है, और आप न्यू क्रिएटर हैं तो आप संडे को रेस्ट कर ले और कंटेंट क्रिएट कर ले पूरे हफ्ते का इस टेक्निक से, एंड देन जस्ट स्टार्ट शेयरिंग इट, ठीक है। और अभी तो वो भी आ गया है ना, आप 6 दिन का कंटेंट क्रिएट कर लें एंड जस्ट स्केड्यूल इट, और फिर जब भी आपका कंटेंट, लेकिन इंगेजमेंट जो है, कमेंटिंग जो है, दैट इज मस्ट मस्ट मस्ट, ठीक है, आपने जरूर इसको करना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि और कोलैबोरेशंस पे आपने जोर देना है, तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट। अच्छा, इसके बाद आते हैं टुवर्ड्स द हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड क्लाइंट्स। मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। पहला जो है दैट इज द, you can also search for the, for example, seeking graphic digital marketer। आपने सर्च बार को यूज करना है, डिजिटल मार्केटिंग, ये मैं लिख लेता हूँ, सीकिंग डिजिटल मार्केटिंग। अक्सर रिक्रूटर्स जो हैं वो पोस्ट में सीकिंग, हायरिंग, नीडेड, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, तो आपने पोस्ट पे क्लिक करना है, एंड यू नीड टू जस्ट, ये देखिए ना, hey recruiter, hi manager, get ready for the, ठीक है, टू लिस्ट्स ओपन टू यूनिवर्स ऑफ पोजीशंस, ठीक है। इस तरह आपको बहुत से इस तरह के पोस्ट आपको मिल जाएंगे। यू नीड टू क्लिक ऑन पास्ट वीक फॉर रिजल्ट्स। सीकिंग डिजिटल मार्केटिंग, आपको इस तरीके से भी आपको मुख्तलिफ किस्म के जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो ये देखा ना, डिजिटल मार्केटिंग, हायरिंग डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है, तो बहुत से जॉब्स आपको इस तरीके से मिल सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज द, इसमें आप हायरिंग भी कर सकते हैं, हायरिंग डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है एक और टेक्निक, दैट इज द इवेंट्स। आपने क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द इवेंट्स। मेरा गला बस अब बेट ही किया है बस। अच्छा, क्लिक ऑन द इवेंट्स, और इवेंट पे आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग, तो आप मार्केटिंग को क्लिक कर लें, ठीक है, मार्केटिंग सर्च कर लें, तो 2500 इवेंट्स आपके पास अवेलेबल हो गए, ठीक है। आपने अब क्या करना है, AI रेवेन्यू समिट है, ये देखना, अब यहाँ पे ज़्यादा फाउंडर्स आएंगे, 2213 अटेंडीज हैं, बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन ये देर ऑल कैन बी योर लीड्स, ये यहाँ पे फाउंडर हो सकते हैं। आपने क्या करना है, इस पे ओपन करना है इस तरह के इवेंट को, देन क्लिक ऑन द अटेंड, अटेंड पे क्लिक करना है, एंड देन यू नीड टू अटेंड पे क्लिक करें तो आपके पास ये सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस पे आपने लोकेशन पे फिल्टर करना है कि मुझे तो यूएस के लोगों से कनेक्ट करना है। आप ये सारी वो जो फिल्टर्स मैंने बताई थी, फॉलोअर्स, क्रिएटर्स ऑफ, टॉक्स अबाउट, जो मार्केटिंग के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल 41 लोग मिल गए, एंड दे आर अब यहाँ पे आप और भी करके आप फाउंडर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि वो फाउंडर CEO हो, ठीक है, टाइटल CEO हो, चेक करते हैं कोई CEO है कि नहीं, 7 लोग CEO हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दे कैन बी यूर लीड्स, ठीक है, दे कैन बी यूर पोटेंशियल क्लाइंट्स। आपने क्या करना है, इन प्रोफाइल पर जाना है, एंड यू नीड टू फर्स्ट कनेक्ट विद देम इन द वे, अगर वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो आपने उनके पोस्ट पर जाना, जस्ट प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, उसके प्रोफाइल पर जाना है आपने, एंड आपने क्या करना है कि उसके पोस्ट पर आपने कुछ इंगेज करना है, कमेंट वगैरह करना है, और फिर उसके बाद आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट उसको भेजनी है, एंड देन ही आर शी आर गोइंग टू कनेक्शन, और इस तरीके से आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा, एंड देन यू कैन आल्सो ऑफर देम योर सर्विसेज। ये जस्ट एक एग्जांपल है, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आप किसको टारगेट करते हैं, किस तरीके से टारगेट करते हैं, एंड दैट इज द फ्री वे, ठीक है, इवेंट्स। नेक्स्ट वन इज द ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स में फिर ये है कि आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप्स में आपने जाना है, ठीक है। अब इन ग्रुप्स का मैं ऑलरेडी पार्ट हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब जब किसी ग्रुप का आप पार्ट बन जाते हैं तो आपने इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप इसमें से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। 23 लाख यहाँ पे लोग मौजूद है, 2.3 मिलियन, एंड यू कैन इजिली मैसेज टू एनीवन। एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे आप थोड़ा सर्च भी कर सकते हैं फाउंडर, ठीक है, फाउंडर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे फाउंडर्स मिल जाएंगे, ये देखें, एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट विद देम, यू कैन मैसेज देम डायरेक्टली विदाउट कनेक्टिंग विद देम, ठीक है, एंड यू कैन पिच टू देम। लेकिन आपने डायरेक्टली कभी भी इस तरीके से पिच नहीं करना, अच्छा मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ, नो, यू नीड टू फर्स्ट कनेक्ट विद देम, पहले थोड़ा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, पहले थोड़ा उनको उनके पेन के बारे में जानें। फॉर एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप मेरे प्रोफाइल पर आ जाएं, ठीक है, आप मेरे प्रोफाइल पर आते हैं और आप मुझे कहते हैं कि मैं आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की ये काम कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे मेरे भाई चाहिए नहीं है ग्राफिक्स का ये काम, तो मैं क्या करूँ आपका, ठीक है। लेकिन आप ये करते हैं कि आप फ्रेशर हैं या आप थोड़ा आपका एक्सपीरियंस है, और आप ये बैनर मेरा देखते हैं और आप कहते हैं कि यार मेरे तो ये सर्विसेज हैं, ठीक है, और आप मेरे लिए ये बैनर डिज़ाइन करके मुझे भेज देते हैं कि आप मैंने ये आपके लिए बैनर डिज़ाइन किया है, अगर आपको पसंद हो तो यू कैन जस्ट पोस्ट इट हेयर, ठीक है, आप ऑन योर प्रोफाइल। तो इस तरीके से आपका जो इंप्रेशन होगा मुझ पे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आप मुझे डायरेक्टली पिच करेंगे, ठीक है। सो यू डू नॉट नीड टू डायरेक्टली पिच, फर्स्ट आपने उनको कोई ना कोई, वो कहते हैं ना उर्दू में क्या, दाना डालना है कुछ ना कुछ, ठीक है, ताकि आपका वो आप पे ट्रस्ट कर सके, ठीक है, वो आपके रिलेशनशिप उसको एक्सेप्ट करें और आपको सिर्फ सेलर न करें, बल्कि आप उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आते हैं टूवर्ड द जॉब्स, ठीक है। जॉब्स में डिटेल में, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास नहीं है इतना, जॉब्स में आपने क्या करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन दी
फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड आपने सर्च करना है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल रिमोट जॉब्स ढूंढते हैं, वर्ल्ड वाइड आप सर्च करना है, क्लिक, ये देखें ना, डेट पोस्टेड पे आपने क्या करना है, पास्ट वीक 3.4 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं इन वर्ल्ड वाइड। आप रिमोट भी कर सकते हैं या आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखें ना, फ्रीलांस राइटर मैं करता हूँ, 1475 जॉब्स आर अवेलेबल, ठीक है। आप इनको जॉब टाइप्स पे कर, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी, कितने हो गए, 1330 जॉब्स हो गए। एक्सपीरियंस लेवल आप कर सकते हैं, एंट्री लेवल, एसोसिएट लेवल, मिड सीनियर लेवल, डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप अभी बिगिनर हैं तो एंट्री लेवल और एसोसिएट पे करें, ठीक है। 1000 हो गई। अब आपने क्या करना है, आप इसको रिमोट भी कर सके, जो आप रिमोट अवेलेबल हैं तो 273 हो गई। आप इन इवन फ्रीलांस राइटर अवेलेबल हैं तो इट मीन्स कि आप रिमोट पे ना भी करें तब भी कोई मसला नहीं है। देन यू नीड टू क्लिक ऑन दी, लोकेशन पे ना करें क्योंकि हमें वर्ल्ड वाइड ही चाहिए, फ्रीलांसर्स हैं हम, ठीक है। एंड यू कैन आल्सो मेंशन दीज थिंग लाइक मार्केट फंक्शन कौन सा होना चाहिए और एप्लीकेंट्स कितने हो, वो डिपेंड, ये कोई मसला नहीं है, ये ना भी करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन, और जब आप इस जॉब को सर्च करें, ठीक है, तो फॉर ये वेब कंटेंट राइटर है तो आपने क्या करना है कि अपनी एक सीवी डिजाइन करनी है, ठीक है। वो मैं डिटेल में अभी नहीं जा सकता उसमें, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है कि इस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अपनी एक सीवी डिजाइन करनी है और फिर यहाँ पे अप्लाई करना है। इजी अप्लाई भी आप कर सकते हैं और डायरेक्टली इजी अप्लाई होगा तो इट मीन्स कि आप लिंक्डइन पर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, या अगर आप इजी अप्लाई नहीं होगा तो आप उसके वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। लाइक मेरे ख्याल में ये वाला, ये इजी अप्लाई, ये देखें, अच्छा ये भी उसी तरह है, इजी अप्लाई है, ये यहाँ पे इजी अप्लाई ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अप्लाई लिखा होगा तो इट मीन्स कि यू कैन, ये वाला आप क्लिक करेंगे तो वो आपको उसके वेबसाइट पर लेके जाएगा, ठीक है, और आपको वहाँ पे अप्लाई करनी। इजी अप्लाई होगा इट मीन्स आप लिंक्डइन पर करेंगे। अच्छा, अप्लाई तो आपने कर दिया, सीवी डिज़ाइन कर ली, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं रुकना, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस कंपनी के प्रोफाइल पर जाना है और या तो अगर आप प्रीमियम यूज़ करेंगे या उसका कोई ये जो जॉब पोस्टर है वो मेंशन होगा तो आपने उसको डायरेक्टली अप्रोच करना है और उससे आपने क्या करना है, फॉलो नहीं करना, बल्कि क्लिक ऑन मोर, क्लिक ऑन कनेक्ट एंड एड ए नोट, और यहाँ पे फिर आपने बताना है कि हाय, क्या नाम है इसका, नाम ही गायब हो जाता है यार, ठीक है, जो भी नाम है, ठीक है, हाय फलाना, एंड I just found a job opportunity of digital marketer in your company, या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, एंड आई हैव सो मच एक्सपीरियंस, इतने साल का मैंने एक्सपीरियंस है, इतने क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है, एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। आपने उसको डायरेक्टली अभी पिच करना है क्योंकि जॉब अवेलेबल है अभी, ठीक है। आपने उसको पिच करना है और अपनी सीवी या पोर्टफोलियो का लिंक आपने भेजना है और उससे यह पूछना है कि मैं आपको सीवी शेयर कर सकता हूँ, एंड क्लिक ऑन सेंड, ही और शी इज गोइंग टू कनेक्ट, ओपन, एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट फर्दर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है और इसको आपने डायरेक्टली अप्रोच भी जरूर करना है। हम अप्लाई कर देते हैं फिर हमने कहा हमने तीर मार दिया, नो, यू नीड टू अप्रोच दीज पीपल। अब अगर आपका कोई यहाँ पे रिक्रूटर मेंशन नहीं है तो आपने क्या करना है कि उस कंपनी के प्रोफाइल पर जाना है और इस कंपनी के प्रोफाइल पर जाके पीपल पर क्लिक करना है, और पीपल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे, अब ये देखें ना, छोटी सी कंपनी है, 35 एम्प्लॉइज है, तो आप उनमें से यहाँ पे छोटी कंपनी होगी तो आप डायरेक्टली उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको डायरेक्टली अप्रोच करें और इसी तरीके का मैसेज करें। उसके फाउंडर को भी कर सकते हैं, उसके किसी दूसरे जो आपके टीम मेंबर हो सकते हैं जो आपके रेलेवेंट स्किल वाले बंदे, उसको भी आप कर सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। अगर बड़ी कंपनी है तो आपने फिर उसको रिक्रूटर को या एचआर मैनेजर को आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे छोटी कंपनी रिक्रूटर है ही नहीं, एचआर मैनेजर, ठीक है, तो आपने उनको करना है, उनको यही वाला मैसेज भेजना है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से जॉब्स को अप्लाई करना है, तो आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अच्छा, सीवी आपने किस तरह करनी है, सीवी में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिखनी, बल्कि आपने जो इस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी डिमांड है वो आपने
उन डिमांड के मुताबिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आपकी क्या अचीवमेंट्स है। अगर वो कह रहे हैं कि आपने बैनर्स डिज़ाइन करने हैं तो आपने अभी तक ये बताना कि मैंने कितने हज़ार या कितने 100 बैनर डिज़ाइन किए हैं। आपने कैंपेन चलाने हैं, आपने मार्केटिंग करनी है तो आपने कितने कैंपेन चलाए, आपने कितने लीड्स उसमें जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बताना है उसको। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, क्योंकि क्योंकि हमारा तकरीबन कम से कम 8 घंटे का सेशन होता है। ठीक है, और 2 घंटे में मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब आई थिंक आरिफुल्ला हम ओपन करते हैं फ्लोर फॉर द क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। ठीक है, जी जी जनाब, कैन वी ऐड कीवर्ड्स इन आवर प्रोफाइल। आप माइक ओपन करें आदिल हुसैन, क्या मतलब है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वालेकुम सलाम, इंफॉर्मेटिव सेशन, यू आर वेलकम, थैंक यू सो बहुत कुछ मच। सीखने को मिला है। ये मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह फाइवर या अपवर्क के हम लोग अपने कीवर्ड्स को मेंशन करते हैं, यहाँ पर भी कोई फीचर अवेलेबल है इस तरह के जो हमारे कीवर्ड से भी कोई तस्वीर हो जाए, जिस अच्छा तरह के अच्छा, पेजेस कॉन्सेप्ट करते लाइक हैं। आप ये कहें कि कीवर्ड रिसर्च हम कर ले कि कौन से कीवर्ड्स अवेलेबल हैं या इस तरह। जो सर्च इंजन होता है ना, जिस तरह फाइवर पे अपवर्क पे सर्च हाँ इंजन हाँ हाँ, होते हैं, तो उसमें कीवर्ड बड़ा मैटर करते हैं, तो तो यहाँ इसमें पर भी क्या वो हाँ बिल्कुल मैटर करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया भी कि आपके जो टॉक्स अबाउट हैं उसमें भी आपने अपने कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। ठीक है, आपने जो 5 कीवर्ड्स मैंने मेंशन किए हैं ना, ये वही कीवर्ड्स का कमाल है। ठीक है, आप यहाँ भी मेंशन करने हैं, और फिर जो समरी में मैंने आपको टॉप 5 स्किल्स है ना, वो भी आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग है तो, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है कि आपने लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, इसमें आपने जो भी कीवर्ड मेंशन करना है, ठीक है, वो मैक्सिमम 2 वर्ड्स का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके सर, फाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नहीं जनाब, स्लाइड नहीं मिल सकते। अच्छा जी, जी जरनिशा खान, जस्ट रेज योर हैंड जिसका कोई क्वेश्चन है। हर बंदे का स्कोप है रहीम ऑन लिंक्डइन। जरनिशा, आपको कोई क्वेश्चन है? जरशीना खान, सॉरी सॉरी फॉर द नेम मिस्टेक। ठीक है, हारिस अहमद, जी ओपन कर प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि हम जैसे कि आपने बताया कि इंडोर्समेंट जो है ना हमें लेनी चाहिए, इसी तरह हम अपने दोस्तों से या फिर जो भी हमारे कनेक्शन हैं उनसे हम रिव्यूज़ भी ले सकते हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन रिव्यू जो होना चाहिए, ठीक है, वो जी प्रोफेशनल होना चाहिए। आज के तो चैट जीपीटी अवेलेबल है, उसे कहें या खुद उन्हें भेज दें, मतलब मुझे मेरे प्रोफाइल में ये रिव्यू आप रिकमेंडेशन पेस्ट कर दें। ठीक है, तो रिव्यूज एंड रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट, और आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका रिव्यू, या आपके अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस या कोई सीनियर लीडरशिप मतलब पोजीशन पे हो, या वो जो है फॉर एग्जांपल वो आपका अगर कोई गोरा मतलब कोई क्लाइंट है तो उससे अगर आपको रिव्यू रिकमेंडेशन मिली तो आपके लिए ज़्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू जैसे अपने दोस्त से। तो दोस्त से आप ले सकते हैं, 3-4 आप ले लें, लेकिन ज़्यादा रिलाई करेगा कोई क्लाइंट या अंग्रेज उससे मिल जाए, गोरे गोरे से मिल जाए कोई। ठीक हो गया। अच्छा सर, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड है वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ मैं। जी तो जी। मैंने कुछ क्लाइंट्स के लिए काम किया हुआ है, तो अभी मैं उनसे अगर रिव्यू लेता हूँ तो मैं उनसे टेक्स्ट में रिव्यू लूँगा या फिर वीडियो में लूँगा, या फिर मैं दोनों में ले सकता हूँ? सर वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो वीडियो में रिव्यू होगा ना तो आपके ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो कोशिश करें कि ठीक हो वीडियो रिव्यू कर लें, ठीक हो और अगर वीडियो रिव्यू नहीं दे तो उन्हें कहें कि मुझे टेक्स्ट में रिव्यू दे दें। ठीक है, और बेसिकली अगर आप ठीक हो ये कर लें कि उनको उनके साथ कनेक्ट करके उन्हें अपने प्रोफाइल पर ले आके रिकमेंडेशंस ले लें, तो ये बहुत आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। सर इसके अलावा आपके कोई और सेशन भी होते हैं जो जैसे कि आप कह रहे थे कि 8 घंटे का जो है ना ये सेशन है, इसकी ट्रेनिंग है,
हाँ बिल्कुल, आप मेरे उस पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। आपको ये तो जी एक सर। तो आप लोग को सबको मैं ये चैट में सेंड करता हूँ, ये गाइड्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे 2 ई बुक्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है। छोटे इतने कि 30 पेजेस एंड 50 पेजेस हैं, और ये भी फ्री है। और इसके साथ मास्टर क्लास में फिर आपको 8+ आवर्स का एक पूरा एक मास्टर क्लास है जिसमें मैंने सब कुछ बताया है, और आपको आप वो भी ले सकते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत एंड शुक्रिया देन सर, थैंक यू। and that comes to जी जी। with a money back guarantee अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। ओके ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। You're welcome। जी, अच्छा, बिस्मा खलील बिन अपने अचीवमेंट सर्टिफिकेशन ऐड कर लें, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। शुड वी मेक 2 सेपरेट अकाउंट, वन फॉर प्रोफेशनल जॉब, वन फॉर साइड हसल? भाई मैं भी जॉब कर रहा हूँ, सॉरी तैयबा, ठीक है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं फिर ये भी चला रहा हूँ, और एक ही प्रोफाइल से हैं, मेरे प्रोफाइल देख सकते हैं। तो कोई 2 प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे। अभी मैं एक यूएस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, एंड शी क्रिएटेड 2 प्रोफाइल्स एंड देन लिंक्डइन ब्लॉक्ड बोथ ऑफ द प्रोफाइल्स, और इतनी हमने कोशिश के बावजूद वो प्रोफाइल ओपन नहीं, फिर हमने कैंपेन चलाई, ठीक है, एंड देन दे जस्ट ओपन देयर प्रोफाइल, और दूसरा प्रोफाइल वो डिलीट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो 2 प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, देन यू आर गोइंग टू, बाकी फिर शायद बाद में फिर दोनों प्रोफाइल से आप हाथ दो। कैन ग्राफिक डिजाइन पोस्ट दियर डिजाइन एज वेल अदर देन पोस्टिंग कैरोसेल? अच्छा, आमना ग्राफिक डिजाइनर्स जो है ना, उनकी जो उन्होंने कैरोसेल इस तरीके से डिजाइन करने हैं ना, आपने डिजाइन भी पोस्ट करें और आपने इस तरीके से कैरोसेल डिजाइन करने कि वो लगे कि ये किसी ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उस तरीके से आपने डिजाइन करना है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी ग्राफिक डिजाइनर हैं, आई नीड 2 ग्राफिक डिजाइनर्स, ठीक है, बेसिकली एंट्री लेवल, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हम मतलब इंटर्नशिप पे रख रहे हैं अभी, तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद मी अगर आप और अपना पोर्टफोलियो मुझे शेयर करें, और दिस इज़ अ पेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो वी हैव 2 स्टार्टअप्स और उसके लिए हमें चाहिए, ठीक है, और बेसिकली ज़्यादातर हमारी सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग है, ठीक है, तो उसमें के लिए हमें चाहिए। तो यू पीपल कैन कनेक्ट विद मी अगर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए विद ड्राइविंग स्टार्टअप्स और हमारे साथ काम करना है, खासकर इन दोनों में मैं लीडिंग पोजीशन में हूँ दोनों स्टार्टअप्स में। सो यू कैन कनेक्ट विद मी आल्सो टू लर्न एंड आल्सो टू अर्न मनी। वॉलंटियर भी चाहिए हमें, ठीक है, बिल्कुल हमें चाहिए, वॉलंटियर्स भी चाहिए। लेकिन ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरह अगर आप कोई वीडियो एडिटर हैं यहाँ पे, दे कैन आल्सो कनेक्ट विद अस, हमारे पास वीडियो एडिटर की अपॉर्चुनिटी भी है। आल्सो बाद में फिर हमारे पास कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बंदे भी चाहिए होंगे, लेकिन फॉर नाउ प्लीज़ शेयर योर पोर्टफोलियोज, वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। जी जनाब, एक और चीज़ गेस्ट, एक और स्किल, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, कॉपी राइटर हैं, तो यू कैन आल्सो एड अनदर स्किल टू योर प्रोफाइल, दैट इज द लिंक्डइन घोस्ट राइटर, ठीक है। ये बहुत अच्छी वो स्किल है, ठीक है। एंड यस, दिस इज रिमोट अपॉर्चुनिटी, मुझे सबसे ज़्यादा रिमोट अपॉर्चुनिटी पसंद है। एंड कंटेंट राइटिंग बिगिनर्स जो हैं, उनमें आपका जो टेक्स्ट कंटेंट होना चाहिए ये बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ऐसे आपने हेडलाइंस लिखने हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, एक प्रोफाइल है, नाम, एक मिनट, सूरजीत, क्या नाम है, एक प्रोफाइल है कंटेंट राइटर का, मैं नाम निकल गया, लेकिन आपने क्या करना है कि कंटेंट राइटर आप एआई टूल्स के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपना न्यूज़लेटर स्टार्ट कर दें, ठीक है, आप अपने शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेक्स्ट शेयर किया करें, ठीक है। आपने क्या करना है कि कैरोसेल क्रिएट किया कि कौन से टूल्स हैं, कौन से टेक्निक्स है कंटेंट राइटिंग के, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन डू फॉर यू। जी हारिस, आप किस जो भी स्किल्स है कनेक्ट कर लें मुझसे, चेक कर लेंगे। व्हाट इज सजेशन फॉर कैसे गेस्ट कर? पोस्टिंग लिंक्डइन पर, मैं कनेक्ट कर ले मेरे साथ।
सर आपकी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी? यस, बिल्कुल मिल जाएगी। एंड आरिफुल्ला अवेलेबल है कि नहीं, या आरिफुल्ला चले गए हैं मेरे ख्याल में? कोई जनाब बोले ना, आपकी भी हमें ज़रूरत है। अच्छा जी जनाब, ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। जी 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 सर। जी जनाब, आप मेरे सो गए थे। नहीं, मेरा एक और मीटिंग था, क्लाइंट के साथ लगा हुआ था। करें मीटिंग करें, सॉरी। जी जनाब, वी हैव ओनली 2 more minutes। कोई क्वेश्चन है? एंड अगेन आई एम सेइंग, रिक्वेस्टिंग पीपल, अगर कोई भी एंट्री लेवल ग्राफिक डिजाइनर है, एंट्री लेवल ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी आती हो, ठीक है, वी हैव दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एंड वी विल आल्सो इंक्रीज द पे लेटर। लेकिन अभी भी पेड अपॉर्चुनिटी है, वी आर नॉट गोइंग टू डू आस्क योर फ्री वर्क, ठीक है, कोई भी वो नहीं है। और तो यू कैन कनेक्ट विद अस ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स एंड आल्सो सोशल मीडिया मैनेजर्स, वो भी कर सकते हैं मेरे कनेक्ट, ठीक है। सर मैंने रिक्वेस्ट ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, आप काइंडली एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, देखते हैं। सर वी हैव 10 to 15 designers. हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रहे भाई। We have 10 to 15 designers. I'll share the portfolio with you. अच्छा, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जी सर, राइटर्स भी है और वेब डेवलपर्स भी है। अच्छा, ये तो जी। बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ये तो ओके, काइंडली कर लें, शेयर कर लें मेरे साथ। श्योर सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो आई थिंक करनी चाहिए सी को इन्हेंस करने के लिए जॉब। सी अब ये डिपेंड करता है ना कि आप ने सी को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, आपको जॉब ही मतलब जॉब के लिए इंटर्नशिप मेरे बात एक ही है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर आपको कोई जॉब या इंटर्नशिप नहीं मिल रही, आपका स्किल सेट है, तो किसी भी स्टार्टअप के साथ अटैच होके थोड़ा एक 3-4 प्रोजेक्ट फ्री में कर दे, कोई मसला नहीं अगर आप फ्री में कर देंगे, ठीक है। ये देखें, मेरे अभी 55-56,000 फॉलोअर्स हैं। आरिफुल्ला का माशाल्लाह अपना एक ब्रांड है, अपना एक वो सब कुछ काम चला रहा है, लेकिन स्टिल ही इज डूइंग दिस फ्री थिंग्स, ठीक है। तो अगर हम इस लेवल पे आके, मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत पनेखान बन गए, लेकिन स्टिल इस लेवल पे आके हम फ्री, ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये टाइम, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फ्री क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यू नीड टू डू फ्री थिंग्स, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे कोर्सेज फ्री किए, इवन मैंने ठीक है, ये कभी कभी टाइम आता है, मैं इवन अपना जो 8 आवर्स का मास्टर क्लास है, वो भी मैंने 2-3 बार, आरिफुल्ला को पता है, उसके बहुत से स्टूडेंट ले भी चुके हैं, 5 डेज के लिए मैं फ्री कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट। लेकिन मैं अब बताऊं, अब फ्री क्या मसला क्या होता है, अब ये तो थोड़ी बात उस तरफ चली गई, लेकिन जो है ना, आपने फ्री अपॉर्चुनिटी जरूर अवेल करने हैं, स्टार्टअप से अटैच होके आप करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फ्री जो होंगे ना, फ्री की फिर वैल्यू भी लोग नहीं देते फ्री को, ठीक है। बिलीव मी, 8 घंटे का मास्टर क्लास में 5 दिन के लिए दे देता हूँ, एंड 10 लोग भी उसको, 100 लोग रजिस्टर करते हैं और 10 लोग भी उसके 10 वीडियोस भी नहीं देखते, बिलीव मी, ये होता है फ्री का, ठीक है। तो बात ये है ना कि फ्री की कोई मतलब वैल्यू, कुछ कोई कोई उसको वैल्यू नहीं देता, लेकिन स्टिल ये है ना कि हम, ये मैं 100 लोगों के लिए नहीं लगा, मैं उस एक बंदे के लिए यहाँ पे आया हूँ, जो एक बंदा यहाँ से कुछ भी सीख के और फ्रीलांसिंग से कुछ पैसे कमा के अपने घर वालों पे खर्च करे, अपने पे खर्च करे, अपने वो बनाए, ठीक है। कुछ ना कुछ, अगर एक बंदा भी यहाँ से 101 बंदे थे, नाउ 49, और ये रिकॉर्डिंग बाद में शेयर होगी, ठीक है। तो वो अगर एक बंदा भी इससे सीखेगा तो आई वुड से कि यार मैंने अपना काम कर दिया है, ठीक है। तो बात ये है ना कि बस, और एक बात याद रखें, जो भी आपको कुछ मिले, ठीक है, तो उसको आगे शेयर किया करें, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। और बाकी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे बहुत से एक कम्युनिटी भी है, मैं आपके साथ ये
आरिफुल्ला पे अपने साथ शेयर फिर कर लेंगे, ठीक है। सो यू कैन फॉलो आरिफुल्ला फॉर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फॉलो मी। और बाकी ये जो बुक्स मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। लेकिन स्टिल आरिफुल्ला और हम जैसे लोग हैं, ठीक है, हम उस एक बंदे के लिए लगे हैं साहब में जो इस चीज़ से शायद उसको कोई वैल्यू मिले, ठीक है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। Jazakallah, and thank you so much Arifullah for such a great platform